Of today's session, C. Asim Trivedi sir, Regional Council Member C. A. Churchill Jain sir, Senior Member of the Profession, and my dear friends. I, C. A. Gaurav Maheshwari, welcome you all on behalf of Indore branch of CIRC of ICI. Today, again, we are live with you in Joy of Learning Week, a pre-celebration of CA Day, and we have with us Indore ki Muskan, C. Asim Trivedi ji, on topic of common error in audit report and financial statement. Friends, with overwhelming response, आज हमारे पास 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए थे, तो हमें अनफॉर्चुनेटली 500 रजिस्ट्रेशन पे आज के प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ा। आज जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल का टाइमली रजिस्ट्रेशन करवा लें। Now I request CA Harsh Firoda ji, Chairman of Indore branch, welcome speech. Thank you, Gaurav ji. Indore branch. Good afternoon, everyone. Respected Asim Trivedi sir, today's speaker. अभी किसका लगा हुआ है? Council member CA Churchill Jain, किसी का माइक अनम्यूट है? CA Samkit Bhandari ji. किसी का माइक अनम्यूट है? First of all, I would like to thank sir that our registration for today's program is full. Harsh bhaiya, sorry to disturb. हर्ष भैया, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, प्लीज। हर्ष भैया को अनम्यूट कर। Thank you, Gaurav ji. Good afternoon, dear members. Respected Asim Trivedi sir, our today's speaker. CA Churchill Jain ji, Regional Council member. CA Samkit Bhandari ji, Sikasa chairman, and dear members. First of all, I would like to thank CA Asim sir that आज के जो हमारे रजिस्ट्रेशन है फुली क्लोज हो गए, हमें प्रोग्राम पूरा प्री क्लोज करना पड़ा है सर। Now as lockdown is lifted, everyone is finalizing and preparing their balance sheet. So जो आज का प्रोग्राम है हमने इसीलिए लिखा है कि मेंबर्स को कि हेल्प हो सके टू अंडरस्टैंड कॉमन एरर्स एंड मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग व्हिच कैन बी अवॉइडेड। असीम सर ने बड़ी मेहनत करके एक क्वारंटाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिवेंट ऑडिट टू बिकम कोरोना पॉजिटिव स्लाइड्स बनाई है जो इंक्लूड करती है वेरियस एरियाज लाइक इन्वेंटरीज, रेवेन्यू, etc. Now I urge members to utilize virtual CP meeting and take structured CP credit. Up to 20th of this month, every day we have 4 to 6 CP programs. I would like to once again thank you, Asim sir, for taking our opportunity and giving his time. Thank you, sir. Thank you, Harsh bhaiya. Now I request our own Regional Council member Churchill Jain ji for his remark. Please, Churchill bhaiya. Please unmute your mic. Hello. Thank you, Gaurav bhai. Dear branch chairman Harsh Firoda ji, Secretary Gaurav Maheshwari ji, सिकासा चेयरमैन डैशिंग समकित भंडारी जी, और हम सबके गुरु बॉस असीम त्रिवेदी सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और जो आपने समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो टॉपिक आपने चुना है वो वास्तव में बेहद कारगर सिद्ध होगा अभी के समय में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी की बैलेंस शीट फाइनल होनी है अभी। तो लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट का तो लास्ट डे 30 तारीख ही था। बाय लक सेबी ने उस डेट को 31 जुलाई बढ़ा दिया है, कर दिया है। तो आपका सेमिनार 500 पे क्लोज हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन है कि वापस एक आपका सेमिनार कराना पड़ेगा क्योंकि वो डेट बढ़ गई है और सभी इससे लाभान्वित होना चाहेंगे। तो मैंने आपके जो आपने टॉपिक बनाया है उसके पार्ट्स भी देखे थे कि आपने जो अनेक में दिया है कि क्या क्या टॉपिक आपने कवर किए, और तकरीबन जो देखा जाए कि इन डेज से रिलेटेड जितने टॉपिक्स कवर करने चाहिए बैलेंस शीट बनाते टाइम पे लिस्टेड कंपनी के, तो आपने मोस्ट ऑफ पार्ट कवर किया है और हम सब लाभान्वित होना चाहते हैं आपसे। और
मैं हर्ष भाई से गुजारिश भी करूंगा कि ये डेट 31 जुलाई हो गई है, तो कृपया करके असीम सर का एक सेमिनार स्पेशली वापस से किया जाए, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान बहुत है और हम सब उनसे लेने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। थैंक यू हर्ष भाई एंड मैनेजिंग कमेटी इंदौर। Thank you, Churchill भैया. Now I invite CA Samkit Bhandari ji, Sikasa Chairman of Indore branch, to introduce our today's speaker, CA Asim Trivedi sir. Over to you, sir. Samkit bhaiya, please. Gaurav bhai, with due regards to our speaker and very senior member, CA Asim Trivedi ji, it's my honor to welcome him as well as उनका परिचय देने का जो आपने बात किया है वो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, मैं उनका परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि इंदौर और इंदौर ही नहीं, CIRC और CIRC नहीं, पूरा इंडिया उन्हें जानता है। हमारे गुरु श्री असीम त्रिवेदी जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हाइब्रो मेंटर लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और वो एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं बहुत सारे लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के। और बहुत विशेष बात मैं बताना चाहता हूं कि उनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस लर्निंग को लेके, कंपनीज एक्ट को लेकर के, ऑडिट को लेकर के, क्योंकि उन्होंने IFRS की ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IRS, न्यू कंपनीज एक्ट जब बना उसमें बहुत अपना योगदान दिया है। तो हम चाहेंगे सर, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, सर को सभी जानते हैं, तो आज हम शुरू करते हैं असीम सर के साथ। सर आपका वेलकम है, ओवर टू यू गौरव। So thank you so much Samkit भैया. जैसा कि आपने बताया, असीम सर का इंट्रोडक्शन हम हमारे शब्दों में मेरे ख्याल से कहा के भी नहीं करते. So now without further delay, I want to invite Asim sir for his technical session. Asim sir, over to you. Yeah, thank you. I think YouTube live भी हो रहा होगा अभी, YouTube लाइव भी चल रहा है सर. अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है सर. Okay, so now thank you Harsh, and sorry for the delayed acceptance of mine because some problems were there before you asked me to give on this particular topic, but some busy schedule was there, hence I could not accept your. ऐसा होता है ना यार, घर में अपना प्रोग्राम है तो चलता है, हर्ष को बोल देंगे फिर कभी कर लेंगे, यहीं तो बैठे, तो थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अब जब आपने एक टॉपिक दिया था दैट कॉमन मिस्टेक्स फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपने को एक सेमिनार करना है, तो मैंने सोचा कि जो कॉमन मिस्टेक हो रही थी उन पे तो हम पहले भी सेमिनार ले चुके हैं, लेकिन अभी जो हमको इमीडिएट मिस्टेक होने वाली है ऐसा लग रहा है, वहां पर हमें क्या करना होगा। तो फॉर दैट मैंने कहा कि फिर इंस्टीट्यूट के जितने भी अभी कोविड के दौरान गाइडेंस आए थे उनको और उन गाइडेंस को अपने SME और SMP पे वो गाइडेंस कहाँ एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वो जितने भी गाइडेंस आए हैं वो सारे गाइडेंस जो हैं वो इंड AS और लिस्टेड एंटिटीज और उन्हीं को एड्रेस करते हुए लिखे गए हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये हम जो ऑडिट कर रहे हैं ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है भी या नहीं। सो टुडेज डिस्कशन इज प्योरली फोकस्ड ऑन SMEs एंड SMPs। सो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस पर है और हम ये सब जो स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स हैं उनके ऊपर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटीज एंड बिग फर्म्स, इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर देम आल्सो। बट टू डिसेमिनेट द नॉलेज व्हिच इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो वो मैं SME और SMP तक इफेक्टिवली पहुंच जाए उसके लिए कोशिश जो है वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में की थी। आज सुबह से मैंने सभी को ये स्लाइड्स भी भेज दी थी, मैक्सिमम जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे उनको, और मैंने उनसे सजेशन भी मांगे। एंड आई एम हैप्पी टू नोट कि ऑल ओवर इंडिया से सजेशन आए कि ये भी चीजें इंक्लूड करें, ये भी चीजें इंक्लूड करें। यज्ञेश भाई मुंबई से थे, पदम सिंह क्रेस्टो शी इज फ्रॉम मुंबई, अविचल कपूर साहब कानपुर से थे,
बियानी जी जोधपुर से थे, केमिशा जी का भी एक सजेशन आया था, SM गोयल साहब ने एक सजेशन भेजा है जो मैं इस पूरी वार्ता के आखिरी में आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन उन्होंने दिया है। पंकज शाह जी ने कुछ सजेशन दिए थे, राजेश सोडानी जी ने सजेशन दिए थे, अतुल शर्मा जी ने कुछ सजेशन दिए हैं, विनोद रोनवाल जी ने सजेशन दिए हैं, गगन जवाहर साहब ने सजेशन दिए हैं, तरुण महाजन साहब ने भी सजेशन दिया कि आपने इसमें इम्पेयरमेंट कवर नहीं किया, तो मैंने कहा मैं वो इम्पेयरमेंट भी कवर कर लूंगा। आशीष साबू जी ने एक सजेशन भेजा था कि यार SME की डेफिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आशीष भाई अगर आपको को समय मिला तो हम उस डेफिनेशन पे जरूर जाएंगे। मयंक चांडक जी हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, he also asked something. Anshul Ajmera ji had given me a lot of queries. Pranesh Jain sir gave me a lot of queries. Mohit Jain sir gave me some feedbacks. And after all, our all-loving Churchill, he has also suggested, and I requested Churchill that this is our SME and SMP, though this program is of Indore branch, but our all members should be benefited, क्योंकि हम लोगों का भी मतलब आप मान के चलिए कि कोविड जब से शुरू हुआ है और ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, हर दूसरे या तीसरे दिन कहीं ना कोई सेमिनार होता है, उसके बाद भी ब्रांचेस को हम लोग कवर नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने चर्चिल जी से कहा कि आप सेंट्रल रीजन की जितने भी स्मॉल ब्रांचेस उनके चेयरमैन को भी SMS कर दीजिए कि वो लोग भी YouTube पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देख लें, क्योंकि अब ये चीजें जो हैं सिर पे आ गई हैं और इनकी तैयारियां करवानी पड़ेगी क्लाइंट को, तो और हमको भी खोद के देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो उस हिसाब से एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम बन गया। चर्चिल भाई ने पूरे CIRC में वो सारे SMS पहुंचा दिए और आज हमारा ये सेमिनार प्लस अदर यूट्यूब पे जो व्यूअर्स हैं, मुझे अभी यूट्यूब की लिंक आ जाएगी, देन आई विल टॉक टू देम आल्सो। सो लेट अस हैव अ फ्रूटफुल सेमिनार ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कोविड, एंड वी हैव टू क्वारंटाइन each and every item of financial statement to our office for at least our observation कि यार इसको क्वारंटाइन में रख के जरा इसको एक बार देख लिया जाए कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि कोविड के एडवांटेजेस की आड़ में कंपनीज क्या क्या कर जाएंगी, छोटी फर्म्स क्या क्या कर जाएंगी, वो हमें भी नहीं पता चलेगा। इसके इतने रिपरकेशंस आने वाले हैं सर इस लॉकडाउन के कि हर आदमी जो है इस लॉकडाउन की आड़ में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है। और इस बार तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें आप मान के चलिए कि ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि घर में रहना जितना डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है उतना ज्यादा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफिस में इन लॉकडाउन वाली एंटिटीज का ऑडिट करने का रहेगा। So let us start with the first topic जो हमने लिया। Now एंटिटी इन्वेंट्री सबसे पहले लिया। इन्वेंट्री इतना बड़ा टॉपिक बन गया है इस वक्त हमारे लिए कि इंस्टीट्यूट को भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो है इशू करनी पड़ी एडवाइजरी। इंस्टीट्यूट ने कम से कम 4 एडवाइजरीज इशू की हैं इन लास्ट 1 or 2 months फॉर ऑडिट एंड अकाउंट्स। तो मैंने उन सब का सम अप लेकर के यहाँ पे लेने की कोशिश की है। So entities will expect a significant reduction in the sales and sales price in near future. 15 जून से लॉकडाउन 21 जून से लगा, लेकिन 15 जून से इफेक्ट आना शुरू हो गए थे कोरोना के, और जब से लॉकडाउन हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, महाकर्फ्यू हमारा जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद से इंडस्ट्रीज की सेल्स डाउन हो गई, प्लांट बंद हो गए, सेल्स खत्म हो गई। 31 मार्च तक आते आते कम से कम 10 से 12 दिन की सेल्स का फर्क पड़ा। बात वहां खत्म नहीं होती, बात वहां से शुरू हुई और जो अब तक खत्म नहीं हुई। अब जाकर के लॉकडाउन खुला है, लेकिन अब मजदूर नहीं है, तो प्लांट्स अब तक फुल ऑपरेशनल फेज में आ नहीं पाए। प्रोडक्शन हो रहा है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स के लॉजिस्टिक्स नहीं मिल रहे हैं, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी हम अगर सबसे पहली बात ये करें कि इन्वेंट्री का क्या करना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि 31 मार्च के दिन इन्वेंट्री उसकी थी कितनी, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग
501 तो लगा ही नहीं पाए। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 501 हम लगा ही नहीं पाए, बिकॉज 501 के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हमको करना था, अरे उन्होंने ही नहीं किया, हम क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे 31 मार्च को। अब लॉकडाउन खुला है तो क्या अब हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं? अगर फिजिबल होता है तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर हम अपना काम करेंगे। अब बात आती है कि सब अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगे। जहां संभव है अकॉर्डिंग टू ऐसे 501 हम वहां जा सकते हैं और जाकर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हैं, और जितने डिस्पैचेस और इशू और रिसीट्स हुए हैं वी कैन डू दैट today, and we can roll back up to 31st of March, and we can have very well evidence regarding the inventory, about their existence, about their conditions. नहीं साहब, हम नहीं जा सकते हैं and it's a life threatening risk, तो वहां कौन जाएगा? मत जाइए। पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लीजिए ऐसे 580 में, और उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इन्वेंट्री की कंप्लीट लिस्ट ले लीजिए। हो सके तो उनके इंटरनल ऑडिटर, अगर ये फिजिबल है कि इंटरनल ऑडिटर उनकी सिटी में है और पास में है और वो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन की लिस्ट दे सकते हैं, सो वी कैन हैव फिजिकल, वी कैन यूज फिजिकल वेरिफिकेशन बाय दैट इंटरनल ऑडिटर आल्सो। नहीं साहब, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं हो पा रहे, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें? तो फिर एक काम कीजिए, आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पूरा ले लीजिए, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट से पहले, ऑडिट रिपोर्ट जाने में जितना भी टाइम लगेगा, ऑडिट रिपोर्ट से पहले एक बार क्या हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को हम सामने रख के और ऐसे 560 लगा के, सब्सीक्वेंट इवेंट लगा के हम वाउच करवाएं अपने आर्टिकल से कि अप्रैल, मई और जून में जो डिस्पैच हुआ, क्या उतनी क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में इन्होंने दिखाई भी है? क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो इन्वेंट्री हमको कम रिड्यूस करके बता दे और हम सोचे कि यार लॉकडाउन था तो अब अपने को देखना नहीं। तो हमको ऐसे 501 नहीं बोला है कि if it is impracticable to physically verify the inventory through alternative audit procedure. Now I am applying alternative audit procedure of 580, that is written representation. I am applying audit procedure of alternative audit procedure of SA 560, that is subsequent event. और मैं बैलेंस शीट डेट के बाद के इवेंट, और अगर अप्रैल, मई, जून के क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं तो भाई बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि इन्वेंट्री जो 31 मार्च को थी और इन्वेंट्री जो 30 जून को है, अगर 30 जून को भी वही इन्वेंट्री दिख रही है जो 31 मार्च को दिख रही थी और बीच में कोई खास मोमेंट हुआ नहीं था, then there is no point at all, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बेसिकली एंटिटीज विल, वहां फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो जाएगी, पर मेरी बात अब शुरू हो रही है कि ये तो एग्जिस्टेंस हो गया इन्वेंट्री का और कंडीशन हो गई, इनके दो के एविडेंस तो आ गए, बट द बिगेस्ट हेडेक इज व्हाट अबाउट द वैल्यूएशन? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इस वर्स्ट सिचुएशन में इन्वेंट्री भी उनकी पोजीशन को और वर्स दिखाए, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वो एनआरवी पे करें, क्योंकि 90% केसेस में इन्वेंट्री को एनआरवी पर ले जाना ही पड़ेगा। आप देखिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई में क्लियरेंस सेल लगेंगी, हेवी डिस्काउंट दिए जाएंगे। जब आपको 560 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगा कर ये पता चलेगा कि इन्वेंट्री का जो क्लियरेंस हो रहा है वो लेस देन रिकवरेबल अमाउंट पे हो रहा है, तो जब इन्वेंट्री का लेस देन रिकवरेबल अमाउंट पर हो रहा है तो नाउ इंपॉर्टेंट इज कि जब लेस देन रिकवरेबल अमाउंट पर आपकी इन्वेंट्री जा रही है अप्रैल, मई और जून में, तो फिर हम ये कैसे मान लें
कि 31 मार्च को आप जो वैल्यू दिखा रहे हो कॉस्ट में वो सही है। मुझे अप्रैल मई जून की सेल देखते हुए उनकी 31 मार्च की इन्वेंट्री के अंदर एडजस्टमेंट करवाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो जाए कि वो कॉस्ट पर इन्वेंट्री दिखा रहे हैं और अप्रैल मई जून मेरी ऑडिट रिपोर्ट जाने से पहले ही मैं देख रहा हूं कि जो इन्वेंट्री जिस वैल्यू पर जा रही है वो उसकी कॉस्ट से कम है। तो ये एक नई ऑडिट प्रोसीजर अपने स्टाफ को हमको बतानी पड़ेगी। जो जितना ध्यान हमको जनवरी फरवरी मार्च की अकाउंटिंग पे देखना है उससे ज्यादा ध्यान हमको अप्रैल मई और जून 2020 की अकाउंटिंग पे देखना है, क्योंकि ये 6 महीने का ऑडिट उस 31 मार्च को डिसाइड करेगा कि फिगर सही है या नहीं। सो दिस 6 months अप्रोच हैज टू बी टेकन इन ब्लॉक। तो ये ब्लॉक बनाना पड़ेगा 6 months का, देन ओनली एनीथिंग कुड हैपन। अदरवाइज तो बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन में हम फंस जाने वाले हैं ऑडिट के दौरान, क्योंकि इन्वेंट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटैक्ट रखने के लिए ऑन 31st of March. And even in case of listed entities also, there will be more care has to be taken regarding the inventory. So first thing is that we need to have more and more audit evidence by using standard on auditing 501 and standard on auditing 560. And mind it very carefully. In my whole session, I'm going to pinpoint this standard on auditing 560 again and again and again. Because this SA 560 is going to play a key role in assessing everything. And one more accounting standard and corresponding in the AS will be applicable there, and that is called accounting standard 4. जिंदगी में accounting standard 4 और standard on auditing 560 का इतना यूज नहीं होगा जितना इस ऑडिट में हम लोग करने वाले हैं। सो अपने हर ऑडिट प्रोसीजर में, अपनी हर ऑडिट अप्रोच में we need to take care of these two pronouncement of the ICI. Corresponding Ind AS is also required to be followed. Now, so the first issue is existence of inventory, verification of existence of inventory, condition of inventory, and valuation of inventory. So thank you Rajesh Sodani sir, you have pointed out this particular point to me कि मुझे इस पे डालना था प्रकाश. I have explained to you. अभी इन्वेंटरी पे और आऊंगा मैं, बट नाउ द PPE इज अगेन प्रॉब्लम. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दे हैव बीन रिमेन्ड आइडल फ्रॉम 15th of March till 31st of March. छोटी मोटी एंटिटीज के लिए ये पीरियड मायने नहीं रखता, लेकिन जहां 10,000 टन्स पर डे का प्रोडक्शन हो रहा हो वहां ये 15 दिन का लॉकडाउन, और जहां 550 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी लगी हो वहां इन 15 दिन की आइडल, और जहां फिक्स्ड ओवरहेड्स बहुत हेवी होते हैं और इन्वेंट्री के ऊपर अलोकेट होते हैं, तो वहां फिक्स्ड ओवरहेड्स को जब आप अलोकेट करते हो तो नॉर्मल कैपेसिटी पर अलोकेट करते हो, लेकिन वो नॉर्मल कैपेसिटी अब आपको ये देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी से कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है. वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि अगर नॉर्मली लो प्रोडक्शन हो तो भी आपको नॉर्मल कैपेसिटी पे जाना पड़ेगा, पर हमारी एंटिटीज अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करने की बजाय हमें बरगलाएंगी कि एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड किया जो नॉर्मल कैपेसिटी से लो है, तो पर यूनिट पर टन फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो बढ़ जाएगा. फिक्स्ड ओवरहेड अगर बढ़ गया तो वो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन बढ़ा लेगा. द पॉइंट इज कि 15 दिनों में जितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करने वाले थे, 15 दिनों में वो जितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने वाले थे, उन यूनिट्स से फिक्स्ड ओवरहेड के एलोकेशन पे फर्क पड़ सकता है. और इस साल तो ठीक है, अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे अप्रैल मई जून के, उस क्वार्टरली रिजल्ट में ये जो आइडियल टाइम निकला है इसका डेप्रिसिएशन पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा,
इसका ओवरहेड अलोकेशंस पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड समटाइम इट मे हैपन दैट अ प्लांट अगर हमने बंद कर दिया, अगर मान लीजिए वो ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट है, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट अगर एक बार बंद हो गया तो रीस्टार्ट करने की भी उसकी क्या रहेगी, एक ह्यूज कॉस्ट रहेगी, जिसका प्रोविजन तो नहीं बनाना है, लेकिन अगर ह्यूज कॉस्ट अगर उसके रीस्टार्टिंग की है तो वो नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज होना जरूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कि सर इसकी रीस्टार्टिंग कॉस्ट अभी हमको इतनी लगेगी, वी डोंट नो कब वो रीस्टार्ट होगा। ऑन 31st मार्च जब भी रीस्टार्ट होगा, वी नीड टू हैव दैट मच कॉस्ट इन माइंड। वी डोंट मेक प्रोविजन, क्योंकि ऑपरेशनल लॉसेस जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनका हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन व्हाई नॉट प्रोविजन, बट let's list down the things. पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 allocation of fixed overhead. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 will suggest us कि कितनी स्टार्टअप कॉस्ट इनको रीस्टार्टअप कॉस्ट लगेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 corresponding in days 10 will also suggest us, in day 16 will also suggest us that depreciation का कैलकुलेशन प्रो राटा बेसिस पे करना होगा। 15 days के depreciation को हमको वहां से exclude करना होगा because the plant became idle. Standard on auditing 501 is again relating to inventory, and standard on auditing 560 will tell us that what is the cost of restarting the things and up to how much period the plant become idle. क्योंकि plant अगर 3 महीने 4 महीने 5 महीने idle रहा, फिर workers के ना आने के कारण idle रहा, तो it will definitely giving us a future viability also. हो सकता है कि कुछ प्लांट को रीस्टार्ट करने के लिए फंड्स ही अवेलेबल ना हो और पता चला कि वो 6 महीने और प्रोलॉन्ग रहेगा, तो फिर वहां पर भी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सो दिस इज कॉल्ड पीपीई। जो लोग भी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जूम मीटिंग के अंदर आ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो जूम एक ऐसा जबरदस्त ऐप है। विरोध तो बेशक हम कर सकते हैं कि इसमें चाइनीज स्टेक लगी हुई है, बट मैं बता दूं कि अमेरिका में है चाइनीज स्टेक लगी हुई है, इट्स ओके, लेकिन इसके ऐप जैसा ऐप नहीं है। इतनी डिसिप्लिन मीटिंग करवाता है कि आप क्या बताऊं। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड। उसमें आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको हैंड रेज का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर कुछ पूछना है, आप रेज हैंड कीजिएगा, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा और मैं और आप बात करेंगे, सारे लोग उसको सुनेंगे, मैं आपको एड्रेस करने के बाद आई विल अनम्यूट यू। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ऐप। तो हमारा पूरा इंस्टीट्यूट इसी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिमेन्स आइडल। सो ये एक अलग सी चीज जो है हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइडल रहने के कारण हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। एक बात और है कि अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइडल हुआ, चलिए, तो फिक्स्ड ओवरहेड जो थे वो कंटिन्यू रहे, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड थे वो खत्म हो। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्च के अंदर जो भी हुआ, 15 डेज में जो एक्सपेंडिचर नहीं हुए, वो उनकी अकाउंटिंग कैसे हुई। लेबर ले ऑफ दे दिए गए, एम्प्लॉय चले गए, प्रोडक्शन स्टाफ चला गया, 15 दिन का उनका सैलरी जा रहा है, लीव विदाउट पे नहीं हुआ था, वो लीव विथ पे था। अब लीव विथ पे आपने दिया हुआ है उन लोगों, तो उस लीव विथ पे का भी इन्वेंट्री पर असर आएगा। वो मैं आपसे बात करूंगा 2 स्लाइड के बाद, बट अभी ये बात यहां पूरी नहीं हुई है, ये बस बताना चाह रहा था। रेवेन्यू का क्या करूं सर, ये 4 सिचुएशन मैंने अज्यूम की, क्योंकि ये हर एंटिटी में आएंगी ही आएंगी। ऑर्डर कैंसल हो गया, हमने प्रोड्यूस भी नहीं किया था,
कोई बात नहीं, आपने प्रोड्यूस नहीं किया, उसने कैंसिल कर दिया, अमीकेबली दोनों ने अपना अपना पार्ट अदा किया, वो बोला भाई अब रहने दो, हमने कहा ठीक है हम भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है इट्स ओके, देयर इज नो पॉइंट। मैंने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया, मेरी इन्वेंट्री में वो पड़ा हुआ है, मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि आप लेकर जाओ, वो कह रहा है मैं नहीं लेकर जा पाऊंगा इस वक्त। नाउ द पॉइंट इज कि मेरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि अगर मैंने गुड्स बना दिए हैं और मैंने बायर को कहा है कि आप ले जा सकते हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, फोर्स मेजर इज नॉट अप्लीकेबल राइट नाउ, लॉकडाउन खुल चुका है, मैं अपने क्लाइंट को कह रहा हूं आप ये इन्वेंट्री ले जाइए, क्लाइंट कह रहा है जी मैं इन्वेंट्री ले जाने की स्थिति में अभी तो नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। अब वो बहाने बना रहा है 10, मैं वहां फोर्स मेजर लगा ही नहीं सकता। सो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, तो हमारा सेल ऑफ गुड्स कहता है 1930 कि साहब आपने गुड्स बना दिए, बनाने के बाद बायर को ये सूचना दे दी कि गुड्स आपके रेडी हैं, उठाकर ले जाइए। जैसे ही बायर ने उधर अपना ईमेल भेजा आपको कि मैं नहीं उठा सकता अब, इट इज कॉल्ड बायर्स डिफॉल्ट, और जैसे ही बायर्स का डिफॉल्ट होगा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए बाध्य हैं, और आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, चाहे एएस हो चाहे इंड एस, यू नीड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं लिया है आज जो एएस और इंड एस में डिफरेंस कर रहा हूं, सारे करस्पॉन्डिंग इंड एस के भी प्रिंसिपल्स, और होगा ना, एक एसएमई के ऊपर अगर इंड एस बोल रहा है तो लेना ही पड़ेगा, एसएमई के ऊपर अगर इंड एस बोल रहा है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। हैंड वाज रेज्ड, बट आपको हैंड रेज रखना है, आपको नीचे नहीं करना है उस हैंड को। If you raise hand, then please raise it until I don't answer you. आप फिर raise hand कर देना, अभी गायब हो गया आपका। So already produced, property and goods has not been transferred. Now Pranesh Jain साहब asked me one more question जो मैं आपको बोलूंगा, वो delivered के बारे में आएगा, transit dispute के बारे में आएगा, delivered but payment नहीं आया, क्या करें, जीएसटी की तो हमारी क्रेडिट है, उसका क्या करें, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आज का सेमिनार के 2 घंटे बहुत कम पड़ने वाले हैं, फिर एक आध दिन बैठना पड़ेगा इन सारे इश्यूज को लेके। तो येट टू बी प्रोड्यूस्ड के बारे में तो बात क्लियर है, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है तो आपको देखना है बायर डिफॉल्ट में कि सेलर डिफॉल्ट में। बायर कह रहा लाओ जी, हम कह रहे जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे वर्कर नहीं आए, हम कैसे भेजें। सर अब कौन डिफॉल्ट में, अब डिफॉल्ट में है सेलर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है अगर सेलर डिफॉल्ट में है तो सेलर तब तक रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता जब तक प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर ना हो जाए। और सेल ऑफ गुड्स के इसी प्रिंसिपल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ने भी ले लिया है और इंड एस ने भी लिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड एक ही प्रिंसिपल चलता है। प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होनी थी बायर डिफॉल्ट में कि सेलर। अगर बायर डिफॉल्ट में, सेलर आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, और अगर सेलर डिफॉल्ट में तो फिर सेलर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसको स्टॉक ही दिखाना पड़ेगा। और इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपको मैक्सिमम बैलेंस शीट्स में आफत आने वाली है कि जो इन्वेंट्री में माल पड़ा है वो कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हुई कि नहीं, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री डजंट मेक दैट वो सेल है या नहीं। It's a control over the ownership which we have to decide. बोलेंगे साहब वो तो ट्रांजिट में है, तो फिर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा। वो बोल रहा है आपने भेजा मेरे को मिला ही नहीं, ये बोल रहा है मैं ट्रांसपोर्टर से बात कर रहा हूं, तो सर फिर वो ट्रांजिट में है जिसका डिस्प्यूट अभी सुलझा हुआ नहीं। सर माल पहुंच चुका है, उसने छुड़वाया ही नहीं। जब माल पहुंच चुका है और उसने छुड़वाया ही नहीं है तो रेवेन्यू आपका है, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। अगर आपने माल दे दिया और उसने नहीं छुड़ाया, उसकी गलती, उसने नहीं छुड़ाया, आप तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। सर गुड्स अनडिलीवर्ड होके वापस आ गए,
अब अगर गुड्स अनडिलीवर्ड हुए और वापस आ गए तो सेल्स रिटर्न बुक करना है। अब वो गुड्स रिटर्न होके आ रहे हैं कब? अप्रैल और मई में, क्योंकि वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत नहीं दी। हमने तो यहाँ से गुड्स भेज दिए थे 28 मार्च को भेज दिए थे और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत ही नहीं दी, तो हमारे सारे ट्रक वापस लौट के आ गए। अब यहाँ तो फोर्स मेजर क्लॉज आ जाएगा, impossibility to perform the contract becomes void. अब impossibility to perform the contract becomes void. Now nothing could be happened. You have to book the sales return in March itself. Accounting standard 4. आपने sales book कर ली, माना, लेकिन जब goods delivery नहीं हुए, force majeure clause लग गए, आपका contract act लग गया, आप बोल दिया गया वहां पे कि contract becomes void, then what you have to do? No option at all, sir. Just book the sales return. You can't treat it as a sale. सर हम उसको वापस भेजेंगे। आप सर वापस भेज देना, तब सेल बुक करना। अभी तो आप सब रिवर्स करो, सारी एंट्रीज और जीएसटी के सारे प्रोविजन लगाएंगे, उसको सेल्स रिटर्न बुक करना चालू करो। क्यों? रिटर्न आ गया, बात ही खत्म। ट्रांजिट डिस्प्यूट, अपन ट्रांजिट डिस्प्यूट को ले लेंगे। सोनिया दुबे is asking one query. Yes, Sonia, please unmute your mobile, unmute your mic and then meet me again. Just a minute. Myself was not available right now. I'm available. Okay. Unmute your mic and please start asking. Sonia ji, you are asking something? Okay, don't worry. So, am I audible, visible to everyone? Please, मुझे chat पे बता दें. Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Okay. So that is called cancellation. अभी इससे related कोई query है तो you can either give me on chat or you can raise your hand. I can address this. Okay, I'll take at last. Now, sir. Yes. सर यज्ञेश जी ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं रूम में, जस्ट। अच्छा, यज्ञेश जी आ गए? आ गए, यस। ओके, यज्ञेश जी नमस्ते। So now important is that this has to be addressed very keenly. Revenue recognition and inventory, these two accounting standard and in their respective Ind AS are going to play a vital role in case of an audit of any entity. There can be n number of situations. I just took 4. There can be n number of situations. There may be a situation that an order was with us since January. It was required to be delivered in March. Then lockdown started. Now lockdown open. He's saying that now you give me in next 2 months and all. Then what was the terms of your contract were there? We have to take care of. Because अगर उसके अंदर force majeure clause डला हुआ था, then तो okay, डला ही हुआ होता force majeure clause, और force majeure clause तो हमारे सेमिनार भी हुए हैं, तो in that case there is no point. और अगर नहीं भी डला है तो impossibility to perform था, वो हम कर नहीं पाए. अब नई सिचुएशन में हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, that is all to be decided with the novation of the contract. We need to take care of the novation, and then amicably if it is solved, then it's okay. There is no problem. So now, accounting standard 2 why plays an important role कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो ऑलरेडी सोल्ड है और उसकी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है, उसे सेल्स में जाना चाहिए था और वो इन्वेंट्री में आ गई. ये जानबूझ के भी किया जा सकता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में ये देखा जाए कि जिसको वो ये बोल रहे थे कि मैंने इन्वेंट्री बना के रख ली है, सामने वाला लेने कोई तैयार नहीं है, तो मुझे तो इन्वेंट्री में ही रखना पड़ेगी. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोर्स मेजर का हवाला देते हुए वो कहें कि मैंने सेल्स रिटर्न बुक कर ली है और पता चला जून के अंदर वही ऑर्डर उसी इनवॉइस उसी चीज के साथ वापस पहुंच गया. अगर वो वापस पहुंच गया है तो फिर वो सेल्स रिटर्न रिवर्स करवानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. आई एम सेइंग इस बार ऑडिट 18 महीने का करना है, 15 महीने का नहीं करना. We need to take care of this. Then comes
स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उनके कहने से क्या होता है कि डिफॉल्ट उनका है और हमने तो बोला था और उनका नहीं, और उनसे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा के दे दो। हम मंगवा के नहीं दे दो, हम मंगवाएंगे, आप हमको उनका पता दे दो, विल गेट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। Then what is the position? If you are saying dispute, then we should get it like yes, there is dispute. If they are saying that we will not going to take this order in any case, then we will include it in stock. They will say we are trying to get it with you, हम इसको सेल मान लेंगे। तो हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 505 से। सब्सिक्वेंट इवेंट में देखूंगा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 560 में कि बाद में ये सेल्स रिटर्न वापस गया तो नहीं, जिसको ये सेल्स रिटर्न बता रहे थे। देन 580 में आई नीड टू गेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी डिस्कशंस जो हम कर रहे थे। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग व्हाइल वी आर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपका जीएसटी तो देखना ही है, उसमें मैं तो बहुत ही अज्ञानी आदमी हूं, मैं उसमें क्या आपको हेल्प कर पाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो भी हमें देखना ही पड़ेगा। दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। विनोद भाई रुनवाल जी जिनका रुझान रियल एस्टेट की तरफ है, विष्णु गुप्ता जी हमारे रियल एस्टेट की तरफ हैं, विष्णु अग्रवाल जी हमारे रेरा वाले हैं, उनके लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी भी क्वेरीज थी कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और रियल एस्टेट में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज हैं वो क्या करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत चैलेंज अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है। सेल ऑफ लैंड पे तो आपके वही प्रिंसिपल लगना है सर। आप अगर सेल ऑफ प्लॉट और सेल ऑफ लैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं वही कहूंगा कि प्रॉपर्टी इनपुट्स ट्रांसफर हुई थी नहीं हुई थी, मतलब वही जो रियल एस्टेट में ऑनरशिप ट्रांसफर हुई थी और नहीं हुई थी वो रेरा के हिसाब से आपको 31 मार्च के दिन लगा के देखना पड़ेगा, तो वो तो इजीली लग जाएगा। बट प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर जहां हम बात कर रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको मालूम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लगाते समय हम बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स लगाते समय हम बात करते हैं कि कॉस्ट इनकर्ड कितनी है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड। सर अब यहां हो सकता है कि प्रोजेक्ट 6 महीने 8 महीने के लिए डिले हुए, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है, अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस थे, वी कुड नॉट परफॉर्म वेल, कर ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। सो there is a point that again the accounting manipulations could be easily done in this accounting standard 7, and we need to be very cautious about those percentages. We need to get it re-estimated. What is your future cost and why that cost is not increasing? Because if that future estimation of the cost increase, their percentage of completion will reduce, and when their percentage of completion will reduce, it will reduce their revenue and they don't want it. To avoid that deteriorated financial situation on 31st March, every real estate contractor will going to do this kind of accounting juggleries, that they will not going to increase the estimated cost. और मेरा टेंशन तो उसके भी बाहर है, छोटे छोटे से मार्जिन पे काम कर रहे हैं हम ठेकों में, 10%, 15%, 20%, 25%। पता चला कि इस लॉकडाउन के कारण जो कॉस्ट बढ़ी वो 50% के ऊपर चली गई और सामने वाला एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर साइन ही नहीं कर रहा है, और एस्केलेशन क्लॉज है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू डोंट हैव एस्केलेशन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट क्लेम दैट कॉस्ट। और उसके अंदर ऊपर से एक वो भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जाते हो तो लिक्विडेटेड डैमेजेस लगेंगे। अब हड्डी गले की बन गई है, ना उगल सकते ना निकल सकते, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आपको आके बोलता है कि भाई साहब
अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ऊपर चली जाए तो फोर्सिबल लॉस का प्रोविजन करना है। और 143(3) के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट में हमको लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने फोर्सिबल फ्यूचर लॉसेस के प्रोविजन बना लिए हैं। इट्स अ सेपरेट रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 143(3) कि उन्होंने फ्यूचर एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर जितना फ्यूचर के अंदर उनका ज्यादा हो गया है कॉस्ट और रेवेन्यू से ऊपर कॉस्ट चली गई है, तो जितना लॉस कॉन्ट्रैक्ट पे होना वो सारा 31 मार्च के दिन ही बुक करना है। दैट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड करस्पॉन्डिंग इन डेज। Whatever institute had given, it's a broad guideline. हमें हमारे क्लाइंट को ध्यान में रख के ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी कि उन ब्रॉड गाइडलाइंस के जो ब्रॉड फंडामेंटल्स हैं वो जो परकुलेट होके हमारे ऑफिस के अंदर आएंगे, तो आप देखिए कितनी ये सारी चीजें, ऐसा लगता है कि वो गाइडेंस नोट जो आए वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, पर वो सारी ही सभी पे लगेंगी। बड़ी कंपनियां क्या पार्टनरशिप फॉर्म पे लगेंगी जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रही, प्रोप्राइटर कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी लगेंगे प्रोविजंस। सो WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का तो मुझे एक्सपर्ट वैल्यूएशन ही करवाना पड़ेगा अगर अब लगता है तो, क्योंकि मुझे तो कॉस्ट चाहिए ही चाहिए। फ्यूचर कॉस्ट बढ़ी होगी, 6 महीने से कॉस्ट बढ़ेगी, 6 महीने से कॉस्ट बढ़ेगी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कम होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कम होगा, तुम्हारा रेवेन्यू कम होगा। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर रेवेन्यू कम हुआ तो तुमने जितना बिल किया है ओवर बिलिंग कर चुके होंगे तुम, क्योंकि 31 मार्च तक तो तुम्हारी 15 मार्च तक तो तुम्हारी मैक्सिमम बिलिंग हो चुकी होगी। पता चला तुमने एस्टिमेटेड बिलिंग जो की थी वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू से ऊपर चली गई और ओवर बिलिंग हो गई, तो ड्यू टू कस्टमर की लायबिलिटी बतानी पड़ेगी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। You need to show due to customer a separate presentation in accounting standard 7। और अगर अंडर बिलिंग है तो फिर ड्यू फ्रॉम कस्टमर बताएंगे, दैट इज अनदर मैटर। बट ड्यू टू कस्टमर आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कम हुआ है, तो आपका करस्पॉन्डिंग फिगर ड्यू टू कस्टमर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आता है। वो अभी तक नहीं आया होगा आज तक किसी बैलेंस शीट में, बट इस बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगने के कारण। अगली बात, ऐसा सारा लॉस कई साइट्स पे मैंने देखा है, आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ लार्ज हार्टेडनेस, हमने जितने मजदूर हैं उनको रखा, उनको खाना खिलाया, उनको सैलरीज दी, सब हमारे पास है, लेकिन ये एक भी कॉस्ट कस्टमर बेयर करने वाला नहीं। एक भी कॉस्ट वो कस्टमर बेयर करने वाला नहीं है, ना हम उसको बिल कर पाएंगे। इन मजदूरों को जो हमने सैलरी दी उस साइट पे 1 महीने लगातार रखा, तब तक माइग्रेशन नहीं हुआ। मैं जानता हूं मेरे जो जान पहचान वाले हैं, क्लाइंट्स हैं, जो भी हैं, उन सबसे मेरी बात होती, सबने कहा सर 1 महीने तक हमको खिलाना पड़ा, मजदूरों को भगा देंगे क्यों? और मजदूर तो हमारे साथ 8-8 साल से हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ 8-8 साल से हैं, उनको हमको पेमेंट करने पड़े। अब आपने जो ये सारे पेमेंट किए, ये सारे पेमेंट आप बिल तो कर नहीं सकते, तो जाने आपके P&L नहीं, और यहाँ जगलरी बताने की कोशिश की जाएगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लगी है जो रिकवर हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो आपकी रिकवर होनी नहीं है, सामने वाला थोड़ी आपको देने वाला है आपके ये खर्चे, ये तो आपके लिए भी एबनॉर्मल है, उसके लिए तो और एबनॉर्मल। फ्यूचर में जो देना है वो फ्यूचर में खर्च करके आएगा, लेकिन 31 मार्च तक जो खर्चा हुआ है वो तो एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर है, इट हैज टू गो इन P&L, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज WIP। वो WIP में जा ही नहीं सकता क्योंकि वो रिकवरेबल ही नहीं। तो ये तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्च के अंदर जो सैलरी दी है, लॉकडाउन वाले 15 दिन का जो एक्सपेंडिचर है, वो 15 दिन का एक्सपेंडिचर WIP में नहीं जाएगा सर, क्योंकि वो बिल बिल्ड ही नहीं, वो बिल हो ही नहीं पाएगा और रिकवर ही नहीं हो पाएगा। सो वो तो आना ही P&L में। ये तो अच्छा हुआ कि आखिरी के 15 दिन है तो उतना मटेरियल इफेक्ट कई क्लाइंट्स में नहीं लगेगा, तो हम कोई दिक्कत नहीं, मटेरियलिटी तो हमको देखनी है।
कोई छोटे मोटे अमाउंट के लिए हम ये 15 दिन का लफड़ा करके और WIP से निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां 550 करोड़ की WIP और 1-1.5 लाख का कोई फिगर है, तो हम उसको कुछ करने वाले भी। WIP 550 करोड़ की 1 लाख रुपए का क्या करूंगा इधर से उधर में करके, जाने दो उसको, वो भी नहीं बात करेंगे, हम भी नहीं बात करेंगे, चले क्या दिक्कत। लेकिन अब मटेरियल अमाउंट है, then we have to take care of big projects, big workforce. If that is there, then definitely it's going to be a problem. So WIP of construction contract is one thing, future estimated cost of the project is one thing, unbilled and billed revenue is another thing, and lastly I discussed that project cost, that abnormal cost. अभी abnormal cost का एक पॉइंट और आने वाला है। ऐसे कई बंदे होंगे जिन्होंने लिमिट सैंक्शन करवा रखी होंगी इन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लिमिट सैंक्शन करवा रखी होंगी फॉर वर्किंग कैपिटल। तो ये 15 दिन की जो बोरोइंग कॉस्ट है, नॉर्मली तो ये बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से इंक्लूड होती है इन द WIP इटसेल्फ, लेकिन इन 15 दिन की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आपको WIP में जोड़ने नहीं देगा, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस में आपको इंटरप्शन ऑफ वर्क जो हुआ है, उस इंटरप्शन ऑफ वर्क के कारण यू नीड टू गेट इट सॉर्टेड, उसको अलग करना पड़ेगा और उसे P&L में डालना। 15 दिन का समय है, ज्यादा नहीं है तो ठीक है, लेकिन ह्यूज कॉस्ट थी, ह्यूज इंटरेस्ट है, मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अप्रैल मई जून में जितनी बातें मैं 15 दिन की बता रहा हूँ ना, वो तो ठीक है, लेकिन जब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी ना अप्रैल मई जून के, वहां तो ये चीजें सारी जो यहाँ छोटी मोटी मटेरियल लग रही है ना, दे विल बिकम जायंट नेक्स्ट क्वार्टर, बहुत बड़ी हो जाएंगी नेक्स्ट क्वार्टर में जाकर ये समस्याएं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस 15 डेज तो हमको करना ही है, एंड फ्यूचर भी देखना है दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, अब एक बात और, जो 31 मार्च को भाई ने अकाउंटिंग कर दी और अप्रैल मई जून तक ये लॉकडाउन चला, और मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाद में कोई नेगोशिएशंस हुए, जिन नेगोशिएशंस के कारण दोनों पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आया और एग्रीमेंट रीड्राफ्ट हुआ, तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लगेगा, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। और अगर उसके अंदर रेवेन्यू कम या ज्यादा हुआ और एस्केलेशन क्लॉज सैंक्शन हो गया, तो 31 मार्च को जो मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लूंगा टोटल रेवेन्यू का, वो रिवाइज्ड टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लूंगा मैं सेल्स के अंदर। दैट आई नीड टू टेक केयर अबाउट दैट रेवेन्यू। अगर अप्रैल मई जून में जाकर कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ, रेवेन्यू बढ़ा दिया, पहले आपका रेवेन्यू था 90 लाख, अब उन्होंने कर दिया 1 करोड़ 20 लाख, तो अभी तक आप 90 लाख का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल के P&L में रेवेन्यू डाल रहे थे, अब आपको 1 करोड़ 20 लाख का परसेंटेज लगा के आपको रेवेन्यू में बुक करना पड़ेगा, और जितनी कॉस्ट उसने एस्केलेशन में ले ली है वो आप P&L में से उठा के किसमें लेके चले जाओ, रेवेन्यू में। वो AS4 की अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, करस्पॉन्डिंग इंड AS की करनी पड़ेगी। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन केस ऑफ दिस। रियल एस्टेट के सौदों में कोई दिक्कत नहीं, वो तो एज वेल एज अपन ने उसका रेवेन्यू तो हम वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से बुक करते हैं, वहां तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, दैट विल बी ओके। तो हिसाब से कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। नाउ लीजिए सर, tourism industry, we have great sympathy to this industry right now. What they are going to face in next 1.5 year, but जैसे जैसे ये कोरोना का टाइम निकलता जा रहा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
लोग डर के निडर हो गए। अब बोले है तो है। आज आप सिचुएशन देख रहे हैं मार्केट में, मतलब पोहा जलेबी सब खुल गया है, एवरीथिंग इज देयर। अब डर के कारण भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो डर इतना डर हाइप कर दिया गया था कि अब लोग बोल रहे हो जाए तो हो जाए, ऐसा लग क्या करें जान। तो अब टूरिज्म इंडस्ट्री पे जो हम फोर्स ही कर रहे थे कि यार ये 3-4 साल तक इनका क्या होगा, अब वो धीरे धीरे हम भी सोच रहे हैं यार नहीं 3-4 साल तो नहीं, 1-2 साल, और मेरे को लगता है 6 महीने बाद अपन बोलेंगे 1 साल। और हो सकता है कि जो रिपोर्ट आई भगवान करे कि उसके वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़नी है, वो तो ऐसे ही म्यूटेट होकर खत्म हो गया है। तो अब जब म्यूटेट होकर खत्म हो गया है, माय डॉक्टर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट वो तो म्यूटेट होकर खत्म होता जा रहा है, अपने आप को वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स गुड, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। बट अभी एट प्रेजेंट टूरिज्म इंडस्ट्री बना रही है वैक्सीन, और टूरिज्म इंडस्ट्री के टूर्स का क्या करें? सर जो टूर कैंसिल हो गए, वो तो 31 मार्च तक के टूर्स कैंसिल हो गए थे, उनका तो लॉस आपने बुक करना ही है 31 मार्च में। तो पहले तो वो लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि मार्च के अंदर कितने टूर्स थे और कैंसिल हो गए। तो वो टूर्स कैंसिल हुए हैं, होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो जो भी कैंसिलेशन हुआ है वो तो एज इट इज लॉस बुक होना है आपको 31 मार्च। बट कुछ बुकिंग थी जो मार्च में हुई थी, जिनको होना था अप्रैल में, मई में, जून में, लोग सोच रहे थे कि भाई ये अप्रैल तक ही चलेगा, मई तक ही चलेगा, जून तक चलेगा, उन्होंने डेफर करने का सोचा। तो वो फिर अप्रैल मई जून में जाके देखना पड़ेगा कि सब कैंसिल हो गए थे। जितनी चीजें अप्रैल मई जून में कैंसिल हुई थी, उनकी 31 मार्च के दिन रेवेन्यू में रिकॉग्निशन ना हो जाए, इसका भयंकर ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि ये इंडस्ट्री इस वक्त बहुत डिस्ट्रेस में है और ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी कीमत पे बिगाड़ना नहीं चाहेगी। और ये उन सारे टूर्स को जो अप्रैल मई जून की बुकिंग हुई थी, जिनको वो रेवेन्यू मान के बैठे थे, वो उसको रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखना है। क्योंकि वो हमको बता देंगे देखो सर मार्च में इतना सब कैंसिल हो गया, बात खत्म हो गई। सर मार्च में कैंसिल हो गया वो सब ठीक है, जिनको तुमने एडवांस दिखा के रखा हुआ है, और अगर एडवांस दिखा के रखा हुआ आता है तो ठीक है कि लोगों का कैंसिल होगा तो एडवांस वापस कर दें। पर तुमने अगर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू कर लिया था कि टूर नॉन कैंसिलेबल है, और ये जो गलत था, डेफिनेटली गलत था, तो वो तो आप कर भी नहीं सकते थे कि 31 मार्च को आपने उस टूर को भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जो होने वाला था अप्रैल मई जून में। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने नहीं किया और अब कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ करके उस रेवेन्यू को मिटिगेट तो करना है, to mitigate that revenue they can play this kind of a jugglery, and we need to verify that कि ये ऐसा यहाँ हुआ तो नहीं। टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ एक बात अभी और आएगी जो अगली स्लाइड में कवर करूंगा कि इनको क्लेम्स भी मिलेंगे। They have several insurances, वो रखते हैं ऐसी चीजें कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इन दैट केस अगर ह्यूज कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। सो आई विल कम टू द क्लेम्स आल्सो, बट टूरिज्म इंडस्ट्री में ये बेसिक ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब टूरिज्म इंडस्ट्री कह रही है सर हम जब वापस चालू करेंगे, और हमें जो स्ट्रेस हो रही है, हम ये जानते हैं कि अगले 6 महीने तक हम कोई टूर बुक नहीं करेंगे। अब सुनिएगा आप, जिनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भयंकर डिस्ट्रेस्ड बताना है, जो शायद इस कोविड को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए, ग्रांट्स लेने के लिए, या किसी अदर कारण से, या टैक्स पर्पसेस के लिए, या लॉस बुकिंग के लिए, या लॉस लीडर बनने के लिए, व्हाटएवर द रीजंस आर, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिगाड़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे जाके एक और क्रिएटिव अकाउंटिंग करेंगे। सर वो हमको आगे समझाएंगे, सर देखो 6 महीने तो आप भी मानते हो कि कुछ नहीं होना है, उसको भी मालूम है कि अगर उसने बोल दिया कि अगले 2 साल कुछ नहीं होना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि फिर तो वही कंसर्न खत्म हो गया, भैया तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रियलाइजेबल वैल्यू पे लिया। तो वो ये तो कभी नहीं बोलने वाला कि सर देखो 12 महीने 2 साल तो कुछ नहीं होगा, सब यही बोलेंगे सर 6 महीने तो आप मान के चलो कुछ नहीं होगा, उसके बाद तो सब चालू हो जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेवलिंग चालू हो गई तो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग भी चालू हो गई, तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो आप मत टेंशन लो। हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो यहाँ से वहां जाने वाले हैं, टूरिज्म वाले कम है लेकिन बाकी लोग तो हैं, हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, सब कर रहे हैं।
अब वो बोल रहे हैं कि सर 6 महीने तो नहीं हो, अब इस 6 महीने में जो सैलरीज हम बांटेंगे, इस 6 महीने में जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड लगेंगे वो हमको आज ही मालूम। 6 महीने में जो खर्चे हमारे अगले होने वाले फिक्स्ड है सर, तो मालूम मेरे को, तो होना ही है। तो मैं उनका प्रोविजन 31 मार्च को करना चाहता हूं। अच्छा, मतलब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन तुम करना चाहते हो आज? बोले अभी तो आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किया ही ना। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के कहने के अनुसार किया है, और उन्होंने मुझसे कहा कि फ्यूचर लॉसेस को आज ही राइट ऑफ करो। वो मैंने किए, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूं, मैं वहां से बाहर नहीं निकल सकता हूं। या तो आप बिजनेस से बाहर निकल सकते हो सर, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी हो। क्यों प्रोविजन बनाया आपने? बोले बनाएंगे नहीं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का 1 रुपए का प्रोविजन नहीं बनेगा सर कहीं भी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेरे को ओवरहॉल करवाना पड़ेगा। 31 मार्च को मेरे को टेंशन है कि इसको रीस्टार्ट करने की कॉस्ट आएगी 10 लाख। बोले अभी प्रोविजन बनाओ। नहीं बनाना है सर, बिल्कुल नहीं बनाना है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आज से प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 भी यही बोलता है, करस्पॉन्डिंग इंड AS भी यही बोलता है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर बनाते हैं तो रिवर्स करवाइए, बहुत गलत है, बनेंगे ही नहीं। फ्यूचर के एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लॉसेस के 31 मार्च के दिन 1 रुपए का प्रोविजन नहीं बनेगा सर। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको अलाउ नहीं करता इंटरनेशनली। तो वो क्रिएटिव अकाउंटिंग हमें ध्यान रखनी है, फालतू के प्रोविजंस बनाना चालू ना कर दे इंडस्ट्री, क्योंकि ये होगा। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अदर एंटिटीज, इन सब ने अपने क्रियाकलापों के इंश्योरेंस करवा रखे। जो ये नहीं कर पाए 31 मार्च को, ये नहीं कर पाए परफॉर्म, इसलिए इनको लॉस हुआ। लॉस के लिए इनको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। अब हमको उनसे 3 क्वेश्चन पूछने। 31 मार्च को क्लेम लॉन्च किया, हाँ किया, तो अगर 31 मार्च को आपने क्लेम लॉन्च किया है, इफ यू लॉन्च अ क्लेम ऑन 31st of March, तो 31st of March पे आपने अगर क्लेम लॉन्च किया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आपको बोलता है कि आप जो लॉस का प्रोविजन बना रहे हो, पहले आप ये बताओ कि आपको इस क्लेम के मिलने के चांसेस क्या है। अरे सर मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको एक लेटर भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि आपका क्लेम प्रोसेस में है और ये क्लेम आपको मिल जाएगा। देयर इज नो प्राइमा फेसी, ऐसी कोई लेटर इंश्योरेंस कंपनी भेजती नहीं है, पर वो हमको समझाएगा। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो ये कहते हैं कि क्या तुम्हें ये कंफर्म है कि ऐसा क्लेम तुमको मिल जाएगा? अरे सर बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? ये सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में कब आई? पूरे वर्ल्ड की लाइफ में पहली बार ये सिचुएशन आई है, तो हाउ कैन यू से कि हमको मिल जाएगा? मिल जाएगा, कितना मिलेगा? अगर आप उसका रियल एस्टिमेट लगा सकते हो, अगर आपके पास वर्चुअल सर्टेनिटी है कि ये क्लेम मिल जाएगा, तो लॉस में से क्लेम माइनस करके प्रोविजन बनाओ। जो प्रोविजन फॉर लॉस तुम बनाना चाह रहे हो, जो ये प्रोविजन हुआ 31 मार्च को जो लॉस हुआ उसका प्रोविजन बना रहे हो, तो उस लॉस में से नेट ऑफ कर दो भैया उसको। लेकिन उसको नेट ऑफ करने के लिए मेरे को कन्विंसिंग एविडेंसेस चाहिए। अगर मुझे कन्विंसिंग एविडेंसेस नहीं मिले तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। एज एन ऑडिटर आई विल नॉट अलाउ यू।
हमने तो क्लेम लॉन्च 31 मार्च के बाद किया। सर 31 मार्च के बाद आपने जो क्लेम लॉन्च किया है तो आप लॉस की बुकिंग तो पूरी कर लो। फिर मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में ये देखने दो कि आपका क्लेम कितना एक्सेप्टेबल फीचर का है जो जा रहा है और क्या ये क्लेम आपको मिल जाएगा। मुझे अगर आपने वैसी ही प्रोबेबिलिटी बता दी कि इसको मिलना ही है, हमारे पड़ोस को भी मिल गया, थोड़े दिन बाद वो मिल भी गया आपको 31 मार्च के बाद इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो आपको क्लेम मिल भी गया, जून में जाके मिल गया, तो टू माय सेटिस्फेक्शन जून में जाके जितना क्लेम आपको मिल गया है उस क्लेम के अमाउंट से मैं आपके लॉस का प्रोविजन कम कर दूंगा। वो 31 मार्च के दिन मुझे आपका प्रोविजन कम करना पड़ेगा। दैट वी वुड डू, देयर इज नो पॉइंट इन दैट। तो जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोविजन करना ही पड़ेगा तो we shall do this. Now, important ये है सर कि क्लेम लॉन्च्ड बिफोर 31 मार्च हुआ हो या क्लेम लॉन्च्ड आफ्टर 31 मार्च हुआ, और क्लेम लॉन्च्ड एंड सैंक्शन आफ्टर 31 मार्च हुआ, इन तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो क्लेम 31 मार्च के बाद लॉन्च हुए, सुनिएगा ध्यान से, 31 मार्च के बाद लॉन्च हुए और सैंक्शन हो गए, भाई ने प्रोविजन को कम नहीं किया, वो भी गलत है, वो भी गलत है। प्रोविजन को आपको उस रिएम्बर्समेंट से कम करना चाहिए, आपने नहीं किया मतलब आप एक्सेसिव लॉस दिखा रहे हो। सो वी नीड टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, we need to apply accounting standard 1 prudence, we need to apply standard on auditing 580 to get written representation, we need to apply standard on auditing 505 also for external confirmation from insurance company, we need to apply certain procedures under SA 500 for taking all evidences, and subsequent event we need to check out कि ये subsequent event के अंदर claim lodge हुआ या claim reject हो गया। मान लीजिए ऐसा हुआ कि 31 मार्च को बंदे ने बता दिया कि सर क्लेम आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, हमने कहा ठीक है प्रोविजन से माइनस कर दे, उसने प्रोविजन में से क्लेम माइनस कर दिया और 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून में पता चल रहा है कि वो क्लेम जो लगाया था वो क्लेम डिसमिस हो गया। अगर वो क्लेम डिसमिस हो गया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और करस्पॉन्डिंग इंडेक्स बोलता भैया उठाओ और वो प्रोविजन में से जो लेस किया उसको हटाओ और प्रोविजन पूरे का बनाओ। सो वी नीड टू गेट इट डन सर, we need to get it done, तो हमको करना ही पड़ेगा। और ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 15 महीने का ऑडिट है, 12 महीने तो वो अप्रैल मई जून, और जब तक हमारा ऑडिट चल रहा है तब तक 15 तो मोस्ट के लिए बोला कि 30 जून तक आप साइन करने वाले हो बैलेंस शीट। अगर आपने बैलेंस शीट अपनी सितंबर तक लटका रखी और गवर्नमेंट ने और दे दिया टाइम पर, बोले यार 2 दिसंबर तक, बढ़िया है, फिर तो क्या है, अपने को वहां तक ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560 बोलता है subsequent event means those event which occurs between the balance sheet date and date of auditor's report। तो दादा टेंशन अपने को डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट तक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट तक रुक जाता है, पर हमारा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 560 तो वहां तक लेके जाएगा हम, तो हमें तो सारी ट्रेल रखनी पड़ेगी। मतलब जो बंदा ऑडिट करना चालू किया है मार्च से, उसको कंटिन्यूअसली फैक्ट्स पे नजर रखनी पड़ेगी अप to the date of signing of the audit report, तो जाके 31 मार्च के फिगर्स सही आने वाले हैं, नहीं तो अगला साल प्रायर पीरियड आइटम से भर जाएगा। That is very very important। लीजिए employee, staff, workers sent on temporary leave from 15th of March with pay. What about their salaries? Sir, accounting standard 15 or corresponding index, सैलरी दे रहे हो, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, P&L में जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम बढ़िया है, वर्क फ्रॉम होम है तो भी सैलरी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, P&L में जाएंगे। ऐसा तो किसी एंटिटी ने किया नहीं कि लीव विदाउट पे, वो तो होना नहीं। अब सुनिएगा सब एंटिटीज की बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं सभी दूर से।
employee, staff and workers sent on temporary leave from 15th March with pay. तो 31 मार्च तक तो उनको with pay दिया ही हमने, काम तो उन्होंने किया नहीं, डे लेबर का काम नहीं किया, सब घर बैठे थे, मस्त बढ़िया रेसिपीज बन रही थी. It was a novel experience. एडजस्ट ही हो रहा था आदमी, 15 दिन घर में रहता ही नहीं था, वो घर में रहा तो बड़ा अजनबी अजनबी फील हुआ. 15 दिन तो उसको एडजस्ट होने में लग गए कि बच्चों से कैसे बातें करना है और बाकी सबसे कैसे बातें करना है. सो वो 15 दिन तो अकस्टम होने में लग गए कि घर में कैसे रहते हैं, नए नए काम सीखने को मिले. तो उसने घर का काम किया, आपका तो काम ही नहीं किया 15 दिन. तो जो वो घर का काम उसने किया है और सैलरी आप कैसे मिली, लोगों को बड़ा तकलीफ. काम घर का किया, he was assisting his boss at home and we are paying for him. बहुत प्रॉब्लम. बोले अब वो पेंडिंग काम वो आके निपटाएगा, तो जब आके निपटाएगा तो भी सैलरी लेगा, और ये तो 15 दिन के ले ही गया. तो सुनिए सुनिए, लोग कह रहे ये 15 दिन का तो भैया हमको लॉस ही हो गया, ये तो हमने पीएनएल में डाल दिया, और अब जिस काम का पैसा हमने यहाँ दिया है वो बाद में भी करवाना पड़ेगा, तो सर वो 15 दिन के लॉस का भी प्रोविजन बना लो. अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतना, मत सोचो यार. ऐसी ऐसी क्वेरीज आती हैं जब आप वेरियस फॉर्म्स व्हेन दे सेंड क्वेरीज, वो इतना सोच लेते. क्यों सोच रहे हो आप इतना, 15 दिन काम नहीं किया ना, ये सैलरी है ना, इसको पीएनएल में डेबिट करो. ध्यान रखना, प्रोडक्शन स्टाफ की सैलरी, हाँ, वर्कर्स की सैलरी है, हाँ, तो उनकी जो एक्सेल शीट बनती है ना इन्वेंटरी वैल्यूएशन की, वो कनेक्टेड रहती. वर्कर्स की वेजेस और प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, ये सब है ना इन्वेंटरी की शीट से लिंक्ड होते हैं, और जितनी खर्चे यहाँ डेबिट होते हैं ये सब फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड के रूप में इन्वेंटरी वैल्यूएशन में शामिल होते हैं. ये कैच है यहाँ पर. दिस इज अ कैच विच वी हैव हियर. वो हमको देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. सो अब वो एक्सेल में ना चला जाए, प्रोडक्शन की सैलरी और वर्कर्स की सैलरी, उसको वहां एक्सेल में से हटाओ. पीएनएल में तो डेबिट होएगा, वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, वो तो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं. लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट्स का वो हिस्सा जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में शामिल हो रहा था, वो अब इन्वेंटरी वैल्यूएशन में शामिल नहीं होगा. It will not be added to cost of inventory because this is an abnormal cost. ये बात आप कहीं नोट कर लें. जब आप इन्वेंटरी की एक्सेल शीट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की शीट देखें, तो वहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन 15-20 दिन की जो सैलरी गई है, वो सैलरी एक एबनॉर्मल लॉस है, और उसको पीएनएल में तो जाना ही है, वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं बनना है उसमें. That will not become valuation of inventory. वो पीएनएल में ही रहेगी. यानी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में वो ओवरहेड एलोकेट ना हो जाए, this has to be taken care of. ये तो ठीक है. What about the planned investments? Under accounting standard 15, जिन एंटिटीज ने ग्रेच्युटी का प्रोविजन बना रखा है, जिन एंटिटीज ने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन बना रखा है, जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन बना रखा है, जो आपने प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का प्रोविजंस बना रखे हैं, वो ठीक है. लेकिन अब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या उसी तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं? इस पर इंस्टीट्यूट से एक गाइडलाइन हमको चाहिएगी. भगवान न करे अगर हमको इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि एक्चुरियल वैल्यूएशन करवाओ, अगर तुमको लगता है कि इनके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो अब मैं एक्चुरियर कहां से लाऊंगा? 500 तो एक्चुरियर है पूरे इंडिया में, और इतनी सारी कंपनियों के सारे एक्चुरियर वैल्यूएशन तो कर ही नहीं पाएंगे. तो डेफिनेट सी बात है कि दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो
कैसे सर्टिफाई होंगे? तो या तो इंस्टीट्यूट हमको एक नोट्स दी अकाउंट्स बना के दे कि साहब ये जो वैल्यूएशन प्लान इन्वेस्टमेंट का है और हम इसको एक टेम्पररी फॉल माने, पर ऐसी भी कुछ कंपनीज होंगी जिनने प्लान इन्वेस्टमेंट किया होगा जिनके खुद के ही गोइंग कंसर्न के ठिकाने नहीं होना लॉन्ग इसके बाद लॉकडाउन के बाद। तो थोड़ा सा ग्लिच है, अभी इसके ऊपर अपने को गाइडेंस नीडेड है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग भी भेजते रहते हैं सारी चीजों को, यज्ञेश भाई भी यही है, वो भी भेजते रहते हैं इन चीजों को कि इनका क्या करना है भाई वैल्यूएशन। या तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई जो वैल्यूअर है, तो फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी हम कर ही सकते हैं, तो हमारे जो वैल्यूअर पैनल है उसको हमको बोल दो कि यू कैन एडमिट देम एज एन एक्सपर्ट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। और कंपनीज एक्ट ने तो अलाउ किया ही है हमको कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का और इनका वैल्यूएशन कर सकते हैं। हाँ, पर अब क्या होता है कि जो प्लान इन्वेस्टमेंट किए हैं वो किसने किए हैं? अब वो प्लान इन्वेस्टमेंट किए एलआईसी ने, तो एलआईसी एक्चुअल वैल्यूएशन करवा के दे, या एलआईसी लिख के हमको दिलवा, हम एलआईसी से मांगे कि आपने ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम और इसके अंदर जो प्लान इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं इनकी वैल्यू डाउन तो नहीं हुई है, या तो फिर एक काम करें उनसे जो इस बार सर्टिफिकेट है उसमें लिखवाएं कि भाई हाँ एक्चुअल लॉस नहीं है। अदरवाइज यहाँ एक्चुअल लॉस होने के पूरे चांसेस हैं इस साल, तो एक्चुअल लॉस होगा तो एक्चुअल लॉस पीएनएल में आएगा, इट विल affect badly the financial statements of the entities over which the accounting standard 15 is applicable. So a detailed guidance is required from ICI right now that what about this valuation? Do we require to get the actual valuation certificate from the insurance company, or is it sufficient that insurance company will write us that there is no significant actual losses or there are no actual losses? अच्छा, ये भी होता है कि सब actual valuation तो 3 साल में एक बार होता है, हर साल करवाने की जरूरत ही नहीं है, और अभी इंटरवीनिंग पीरियड है नहीं, तो अभी इंटरवीनिंग पीरियड है नहीं, इस वक्त तो कुछ होना नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब गाइडेंस इज स्टिल रिक्वायर्ड अबाउट द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। Impact on AS2 I discussed, but now there is an impact on accounting standard 16. इंटरेस्ट कॉस्ट भी बियर की मैंने, जब मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट बियर की है क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में, ध्यान दीजिए मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपांशन का काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट एक्सपांशन का काम ड्यू टू कोविड रुक गया। ड्यू टू कोविड रुका तो उसमें मैंने जो एम्प्लॉय स्टाफ और वर्कर लगा रखे थे उनकी जो मैंने सैलरी वैलरी दी वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से उसमें कैपिटलाइज होनी थी, वो भी कैपिटलाइज नहीं होगी, वो भी पीएनएल में जाएगी। अच्छा, ये जो 15 दिन का इंटरेस्ट है बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का, अगर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है तो ये क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज नहीं, ये उठ के पीएनएल में जाएगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 का मैंने आपको बता दिया कि मेरे को प्लान इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और प्लान इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसे 620 एक्चुअल वैल्यूएशन वाली बात यहाँ आने वाली। अगली बात जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की महाराष्ट्र में, गुजरात में और आपके मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में जो मेनली आने वाली वो ये है कि मेडिकल एक्सपेंसेस रिएम्बर्समेंट। Those who have been infected with corona, got hospitalized and got reimbursement from the entity. Now their medical expenses which have been reimbursed, those has to be, it may be a huge cost. It may be possible that workers, 40-45 workers and 40-45 employees of a single factory have been admitted into hospital being corona positive, and that particular entity had incurred specific medical cost to them. So this has to be taken to profit and loss account. Now, how that will be accounted for in P&L, how it should be presented in P&L, I'm going to take care separately in the last slide. But we need to keep in mind that this cost is also there. So ऐसे 620 के ऊपर अभी गाइडेंस सॉलिसिटेड है फ्रॉम ICAI, वो हमको एक्चुअल वैल्यूएशन का क्या गाइडेंस देते हैं वो अभी हमको देखना बाकी। लो जी, गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है एम्प्लॉयर का शेयर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ मार्च विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट। मार्च का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगी,
एम्प्लॉयर वाला हिस्सा माफ हो गया भाई, गवर्नमेंट देगी, एम्प्लॉय का हिस्सा तो गवर्नमेंट देगी, हमारा हिस्सा एम्प्लॉयर का पहली बार इस गवर्नमेंट ने की कि साहब वो है 15,000 रुपए तक की सैलरी वाले, फिर वो किन पे एप्लीकेबल है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, जिन पर भी एप्लीकेबल है और उनको ईपीएफ की छूट मिल रही है। अब वो ईपीएफ का खर्चा और वो ईपीएफ की इनकम क्या करना है? कुछ नहीं। पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरे 12 महीने का दिखाओ, लेस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, 1 महीने की गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कंप्लाई हो जाएगा। दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट relating to revenue nature. It can be reduced from the expenses which we are incurring. So we are incurring employers contribution. हमको मार्च तक का पूरा पीएफ दिखाना है, पूरे 12 महीने का पीएफ दिखाना है, लेस, वहीं से लेस होगा। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ ईपीएफ ऑफ मार्च, अप्रैल मई जून में तो वही होना है जो गवर्नमेंट देगी, जो ये तो मार्च का ट्रीटमेंट है, बट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है। देन हमको ऐसे 500 भी देखना पड़ेगा, मतलब हमको देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिली भी है कि नहीं मिली, वो एविडेंस भी तो लेना पड़ेंगे। माइनस कर दिया है, रिसीव होने वाली है, नहीं होने वाली है, सैंक्शन हुई थी, नहीं हुई थी, 31 मार्च को सैंक्शन नहीं हुई थी, लॉन्च ही नहीं किया था, क्लेम ही नहीं किया था, सैंक्शन ही नहीं हुआ था, सैंक्शन हो गया है, मिल गई है, तो वही इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जाके देखना पड़ेंगे। अगर मिल गई होगी तो रिड्यूस कर देंगे, मिलने वाली होगी और सर्टेनिटी से मिलने वाली होगी तो भी रिड्यूस कर देंगे, अते पते ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। दैट हैज टू बी टेकन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस बैडली अफेक्ट होंगे 31 मार्च को, क्योंकि डॉलर बढ़ा है। इंपोर्टर्स के केस में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और ये फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिटर और फॉरेन करेंसी लोन्स, इन फॉरेन करेंसी लोन्स में जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो लॉस हुआ है, उस लॉस का अब कुछ ना होगा, सीधे ही पीएनएल में जाएंगे। मेरे हिसाब से तो एक एडवाइजरी इशू करना आईसीएआई के लिए जरूरी है, वो आखिरी स्लाइड में मैं बताऊंगा व्हाट एडवाइजरी, उन्होंने एक एडवाइजरी इशू तो की है, बट थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ वो इशू करना जरूरी है, जो सबसे लास्ट में मैं कवर करूंगा। अब ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो, अब हमारे यहाँ 2 तरीके की कंपनियां हैं। एक वो कंपनियां हैं जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में एफसीएमआई टीडी अकाउंट के अंदर जोर का झटका धीरे से लगे टाइप का वो जो प्रोविजन आया था 2009 में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था, वो सनसेट होने वाला 31 मार्च 2020। अभी तक अपने पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो एफसीएमआई टीडी आगे बढ़ रहा है, तो वो तो वैसे भी सनसेट होने वाला है। अब मतलब हमारे यहाँ सब एक सरीके हैं, जिन्होंने एफसीएमआई टीडी वाला लिया था वो भी, जो एफसीएमआई टीडी अकाउंट में नहीं जाते थे वो भी, मैक्सिमम को तो मालूम भी नहीं है कि एफसीएमआई टीडी अकाउंट नाम की कोई चीज थी, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधे ही पीएनएल में जाएगा। जो एफसीएमआई टीडी वाले वो होंगे, वो बोलेंगे कि हम तो इसको ट्रांजेक्शन के ऊपर डेफर एंड अमोर्टाइज करेंगे। सर हमारा लोन टेन्योर ना 4 साल का है, तो हम उस लोन टेन्योर को 4 साल, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी के हम उसको एफसीएमआई टीडी अकाउंट में ले जाके राइट ऑफ करते हैं। सर उनको बताना पड़ेगा कि सर वो आपका सनसेट क्लॉज था और सनसेट हो गया 31 मार्च 2020। अब आप डेफरमेंट कुछ भी नहीं कर सकते हो, 11 साल आपने बहुत मजे ले लिए, अब उठा के पीएनएल लेके जाओ। अब अगर कोविड-19 की कोई गाइडलाइन आ जाती है, कोविड-19 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हैं, शायद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी इस पे ध्यान नहीं गया है, बट मेरे हिसाब से जब फेडरल जब अकाउंट्स बनना चालू होंगे, अभी बनने के बाद जो पिक्चर सामने आएगी, जब फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस जो है वो ढेर सारे पीएनएल में डेबिट होते दिखेंगे, तो ये लोग फिर भागेंगे और कहेंगे कि सर उस सनसेट क्लॉज को थोड़ा राइज करो और उसको बढ़ा के 2025 करो,
तब जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अगर उसको 2025 कर दिया तो जस्ट वेट एंड वॉच की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके ऊपर क्या कर रही है। अगर कुछ नहीं किया तो सारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस P&L में जाके गिरेगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 will become biggest culprit of showing the losses. That's too clear. Now, accounting standard 11 we need to take care. Then foreign exchange losses and foreign exchange के जो भी चीजें हैं उन सब के लिए भी हमको लेना पड़ेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. Then 500 के अंदर हमको लेना पड़ेगा other audit evidences. So we need to take care about that. But पहले तो ये निश्चित किया जाए कि हमारे क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है. I think कि most of the client की अकाउंटिंग पॉलिसी तो ये है कि उसको उठा के P&L में डालते हैं क्लोजिंग रेट पे ले जाके. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वही ट्रीटमेंट अभी भी देना है. पर इस बार ट्रीटमेंट देने में पेट में दुखेगा क्योंकि ह्यूज ट्रीटमेंट वहां पर मिलेगा. डॉलर जिस तरीके से आया है इधर उधर तो वो तो हमको देखना ही पड़ेगा. लो जी, इन्वेस्टमेंट का क्या करें. सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है सर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव. जिनको भी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है ना वो मीटिंग से बाहर जाकर एक बार वापस मीटिंग में आ जाए. आई विल अलाउ यू. आप जैसे ही बाहर जाओगे जस्ट लीव दैट मीटिंग, कम अगेन. ऑडियो विल कम. देयर मे बी सम सर्वर प्रॉब्लम और नेट इशू एट योर एंड, तो वापस रजिस्टर हो जाएगा. नाउ इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं. लेकिन जरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लिस्ट लेके देख लें और अगले 3-4 महीने में उस लिस्ट में जितनी कंपनियां हैं उनका उठावना तो नहीं हो गया. कोई ऑबिचुअरी छपी हो इकोनॉमिक टाइम्स में तो देख लेना कि भाई ये कंपनी ने आईबीसी में जाने की घोषणा कर दी है और ये अभी देखो आप आईबीसी के कितने केसेस बढ़े. पता चला वो आईबीसी में ही चले गए, उनका खुद का ही गोइंग कंसर्न खत्म हो गया. तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपको बोलेगा कि बैलेंस शीट डेट पर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो थे और बैलेंस शीट डेट के बाद आपके बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके उठावने हो गए. तो अब उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर अदर देन टेम्पररी रिडक्शन इन वैल्यू वो तो लेनी पड़ेगी. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तो आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट वैल्यू कितनी है. और इस बार रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की लहर चलने वाली है सर, क्योंकि सबको मालूम है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होने वाले हैं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉस आने वाला है. तो मोस्ट ऑफ द कंपनी विल से वी वांट टू रिक्लासिफाई आवर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. हम पूछेंगे क्यों, देन दे विल से कि इन दिस अनसर्टेन मार्केट वी आर नॉट गोइंग टू बुक लॉसेस. हम इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना चाहेंगे. हम उनसे सिर्फ एक ये डिक्लेरेशन लेंगे कि आप अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बता दो. आपने इनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रखा था तो इसलिए रखा होगा क्योंकि आपको लिक्विड फंड्स हैं आपके, जब भी जरूरत पड़ती है आप ले लेते हो. अब आप हमको इन फंड का रिप्लेसमेंट बताओ कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप कह रहे हो रिक्लासिफाई कर दें, तो ये बता दो कि यार भैया आगे जो फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको आएगी वो कहां से मिटिगेट हो. आप ये 5 करोड़ के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. ये अगले 12 महीने में आपको इनफ्लो में आने वाले थे. तो इन अगले 12 महीने में जो इनफ्लो में आने वाले थे वो 5 करोड़ आप उठा के रिक्लासिफाई कर दोगे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. देन फ्रॉम वेयर यू गेट द फंड्स. अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है तो ये रिक्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है. अगर उनके पास जवाब है तो ये रिक्लासिफिकेशन वैलिड. सो सिंपल. अगर उनके पास जवाब है तो ये रिक्लासिफिकेशन वैलिड है. अगर उनके पास जवाब नहीं है तो ये रिक्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है. फिर ये अकाउंटिंग जगलरी है, लॉस से बचने का तरीका. सो वी नीड टू गेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम देम कि तुम क्यों चाह रहे हो किसको लॉन्ग टर्म में ले जाना. दूसरा मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट देखना चाहूंगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आ रही है 31 मार्च की. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और करस्पॉन्डिंग इंड एएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी यही करना है. डी रिकॉग्निशन करना है कि नहीं करना है, इम्पेयरमेंट इन इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है. करते यही है, करने का तरीका फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का होता है. तो वो उनकी जाने. अभी अपन एसएमई एसएमपी पे कंसंट्रेट करें. सो लॉट ऑफ थिंग्स
are on our head right now. Lot of things on our head right now, और everything has to be taken care of. लीजिए जी, अगला हेड है आपका, क्या हमारे क्लाइंट की बुक्स के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं? हाँ है, हम तो इस साल भी क्रिएट करने जा रहे हैं। वाओ, हर साल डीटीए क्रिएट कर रही, वहां तक तो ठीक है, इस साल भी डीटीए क्रिएट करने जा रहे हो? यस। तो पहले ये बताओ कि अगले 2-3 साल नियर फ्यूचर में जितने डीटीए तुम एक्यूमुलेट कर सकते हो उतना कमा लोगे ये मंदी में? सर इतनी मीटिंग करनी पड़ेगी सीएफओ के साथ और इतने एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेंगे उससे कि जिसकी हद नहीं है। वो परेशान हो जाएगा एक बार बैलेंस शीट साइन करवाने में आपसे, और होना भी चाहिए उसको परेशान। सारा हेडेक हम ही ले क्या? और हमारे अकाउंटेंट तो माशाल्लाह ही होते हैं। हम सीए वो, और मैं बड़े वाले सीए वो क्रिएटिव अकाउंटेंट, और बोले सर मजा आ गया, वो नया आ जाएगा वो सीएफओ को जाके बताएगा, सर मैंने एक बेहतरीन चीज ढूंढ लिया अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। क्या? डीटीए रिकॉग्नाइज कर ले, यहाँ पर ह्यूज लॉसेस। वैसे ही अपनी मार्च में सेल बंद हो गई थी, और जितना अपना लॉस सब बुक कर लो, कोई टेंशन नहीं है, 35% का तो अपना डीटीए बन जाएगा। सर 50 करोड़ का लॉस करते, 35% का अपना डीटीए बन रहा, 35% का डीटीए बन रहा, 35% ऑफ डीटीए से प्रॉफिट बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसको बुक कर ले। सर आप ठंड रखो सर, पुरानी डीटीए रियलाइज होने के लाले पड़े। पुरानी डीटीए इसलिए बनाई थी कि इस साल के प्रॉफिट रियलाइज हो जाए। पुरानी एसेट के अभी तो पहले ये देखो कि पुरानी जितनी डीटीए है उनके अमाउंट को रिवाइज तो नहीं करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और करस्पॉन्डिंग इंड एस दोनों यही बोलते हैं कि भैया पहले ये देख लो कि फ्यूचरिस्टिक जो इनकम तुमको मिलने वाली है वो फ्यूचर की इनकम का प्रोस्पेक्ट क्या है, गड़बड़ा तो नहीं गया। तुमने वो डीटीए तो बनाई थी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे, अभी तुम्हारे तो नॉर्मल ऑपरेशन ही नहीं होने वाले अगले 6-8 महीने 10 महीने, और तुम साला टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री है, इस तरह की कोई इंडस्ट्री हो तो भूल ही जाओ कि तुम इस साल कोई डीटीए बनाओगे, पुराने साल की डीटीए मेरे को टेली करवाओ कि अगले साल के रेवेन्यूज तुम्हारे उतने आएंगे। Unless that is not there, how could we? कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। So we need to be very cautious about this deferred tax asset again. Not of this year. This year creation का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक वो कन्विंसिंग एविडेंस लाके नहीं दे देगा कि अप्रैल मई जून की सेल देख लो सर मेरी, दिखा अप्रैल से सितंबर तक की तेरी सेल, मैं भी बनाता हूँ डीटीए 31 मार्च को, कोई टेंशन थोड़ी। अब तेरी अप्रैल से लेके सितंबर तक मेरे साइन करने तक तेरी सेल नहीं हुई और तू मेरे से बोल रहा है मैं डीटीए बनाऊंगा, तो मैं इस बैलेंस शीट पे कैसे साइन करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। So another point which is going to hit all of us, for those companies which are already in losses and they are further in losses and now they are further creating DTA, that's a big deal. अभी तो मैट की क्रेडिट का भी लफड़ा होने वाला है। कुछ लोगों ने मैट क्रेडिट अवेलमेंट के लिए एसेट बना के रखी हुई बैलेंस शीट, उनकी सर्टेनिटी क्या होती है वो तो टैक्स के प्रोविजंस में, टैक्स में क्या इफेक्ट आ रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। मैट का क्या करना है, क्योंकि वहां जो मैट रिसीवेबल बता रखा है एसेट बना के, वो भी तो किसी ना किसी बेसिस पे बना के बता रखा था, वो बेसिस भी गड़बड़ाई, तो मैट रिसीवेबल की जो एसेट्स दिख रही हैं वो भी देखना पड़ेंगे। We need to take care of that also. Loss, EMI डेफरमेंट हो गया, ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त। कॉर्पोरेट्स ने भी व्हीकल लोन पे, लीजिंग पर डेफरमेंट किया है। तो इसका क्या करें सर? अगर आपने बैंक लोन स्टेटमेंट मंगाया हो बैंक से तो वो आपको बहुत आसानी से बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। हर इंस्टॉलमेंट जो हमने
मार्च की इंस्टॉलमेंट जो हमने हटाई वो उन्होंने मार्च की इंस्टॉलमेंट को आपको रीफाइनेंस कर दी, मतलब उन्होंने आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे जोड़ दिया। अपने को भी जो उन्होंने किया वही करना है। जितना लोन था उसमें जो इंस्टॉलमेंट हमारी डेफर हो गई वो इंस्टॉलमेंट को लोन बताना है। इट इज अ फर्दर लोन टेकन। और सर खाली बैलेंस शीट में करके मत भूल जाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी लेके आ जाना। आएगा क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में? दैट्स अ बिग डील। लाना है कि नहीं लाना है? कुछ लोग कहते हैं जब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ना कैश गया ना कैश आया, तो कैश फ्लो में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जिसमें जब कैश ना आता है ना जाता है तो फिर कैश फ्लो में अपन दिखाते ही नहीं। अब इसमें भी क्या हुआ, अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो हुआ कि भाई आपका ईएमआई का पैसा नहीं गया और पैसा आ गया, अगर हम कैश फ्लो में दिखाएंगे तो भी रीपेमेंट में आउटफ्लो हुआ और रीफाइनेंसिंग में वापस आ गया। तो एज सच इतनी बड़ी कोई ट्रिकी चीज नहीं रही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, ना दिखाएं तो भी चलेगा, बट प्रिंसिपल अमाउंट तो बने। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा है तो इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो उस इंटरेस्ट का भी प्रोविजन बना लेते हैं। सर इस महीने से फाइनेंस हुआ है, अगले महीने से उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो वो तो जो यूजुअल इंटरेस्ट लगेगा आप उस इंटरेस्ट को लेते जाओ। बोरोवर को इतनी तकलीफ नहीं है, तकलीफ लेंडर को, हायर परचेसर को भी तकलीफ नहीं। हायर परचेसर की भी जो ईएमआई है वो उसके प्रिंसिपल अमाउंट में बढ़ गई। हाँ, हायर परचेसर को जो डिस्क्लोजर करना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से, उन डिस्क्लोजर में जाकर के उसको चेंज करना पड़ेगा। बट जो मनी लेंडर है और लेसर है, इनके ऊपर तो डिटेल्ड एडवाइजरीज चाहिए सर कि कैसे उनकी आईआरआर चेंज हो जाएंगी, कैसे उनके जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, आईआरआर जो है उस पर फर्क पड़ेगा। अब जब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो आपका है, आपने अपने लोन का टेन्योर 3 महीने से बढ़ा दिया, कुछ लोगों ने 6 महीने से बढ़ा दिया, अब 6 महीने से टेन्योर बढ़ गया और रीफाइनेंसिंग हो गई, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी चेंज हो गया है, इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन भी चेंज हो गया है। अब इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन चेंज हुआ है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। अब ऐसे में तरुण महाजन साहब से कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि साहब लेसर की बुक्स में जितने भी लीज एग्रीमेंट हैं जिनके अंदर उन्होंने डेफरमेंट अवेल किया है उनका आईआरआर चेंज हुआ है। बिना महाजन साहब जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की हेल्प लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो भी देखना पड़ेगा। मैं महाजन साहब का उदाहरण दे रहा हूँ, अपने साथ अपने पास बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी बात कर रहा हूँ दैट महाजन साहब जैसे, I'm not promoting that तरुण महाजन, I'm just saying that महाजन साहब जैसे, तो ये सब बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। So अब बोरोइंग जो है, बोरोअर और हायर परचेसर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो लेंडर और लेसर की अकाउंटिंग। ऊपर से लेसर को तो मैं हैंडल कर लूं, जिनके ऊपर इंड एस लग रहा है वो लेंडर्स क्या करेंगे? नॉर्मल जिन पे लेंडर पे इंड एस नहीं लग रहा है वो तो देख लेंगे, उनको तो इंटरेस्ट रेट और करना है वो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर लग रहे हैं, इंड एस जिनके ऊपर लग रहे हैं, उनका तो वैल्यूएशन फिर वही लफड़ा देगा जो लीज के अंदर देगा, उनका भी सब चेंज होगा। अब ऐसे में जो लेंडर और लेसर हैं इनके साथ एक और प्रॉब्लम आ गई कि इनकी कुछ पार्टीज तो उठी गई हैं, तो वो जो इनके एनपीए के नॉर्म्स हैं लीजिंग कंपनीज के, उनको अलग ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान में रखना पड़ेगा वो भी बता दूंगा। 31 मार्च को बंदे ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, हालांकि एनपीए अपने को 31 मार्च तक ही देखना रहता है, लेकिन 31 मार्च के बाद मेरी तो बैलेंस शीट अभी ओपन है और मेरे तो साइन अभी जुलाई में होना है। इवेंट आफ्टरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट देखूंगा, अगस्त तक तो उसने डेफरमेंट ही किया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगस्त तक आप साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर में भी उसने नहीं दिया, चलो भगवान तब तक तो अपन साइन कर देंगे, कोई टेंशन नहीं।
पर अगर ये डेट बढ़ के दिसंबर होगी और बोला 31 दिसंबर 2020 फाइल करो, तो भैया फिर अगर वहां पे मेरे को निकल के आ गया कि ये तो पार्टी उड़ गई है, then I need to take the impairment of the credit. क्रेडिट इम्पेयरमेंट लॉस देखना पड़ेगा मुझको, that has to be taken care of. और मेरे जुलाई अगस्त तक साइन करते करते कुछ पार्टियां उड़ गई, गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, तो उनके तो बेड डेट्स का प्रोविजन मुझे 31 मार्च को बनाना पड़ेगा सर, लेसर और लेंडर दोनों की बुक्स. So it's a big deal if you are auditing of a leasing or finance company. लीजिंग और फाइनेंस कंपनी के ऑडिटर को बड़े बड़े जितने पोर्टफोलियोज हैं लोन्स के, उन सबको देखना पड़ेगा और विशेष रूप से उन पे ध्यान देना पड़ेगा जिन्होंने मॉरेटोरियम ऑप्ट किया है. और जिन्होंने मॉरेटोरियम ऑप्ट किया है उनके गोइंग कंसर्न का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि आर दे एबल टू पे. इफ दे आर नॉट एबल टू पे, देन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल. सर इन सबको अगर अपन सब्जेक्ट टू कर दे तो अब पूरी बैलेंस शीट में सभी सब्जेक्ट टू कर दोगे बाबू, तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने के अलावा कोई ओपिनियन बचेगा नहीं अपने पास. आप सोचो इसको सब्जेक्ट टू कर दूं, इसको सब्जेक्ट टू कर दूं, इसको सब्जेक्ट टू कर, कितनी चीजों को सब्जेक्ट टू करेंगे. सब्जेक्ट टू बैलेंस शीट एंड पी&एल गिविंग ट्रू एंड फेयर ये देना पड़ेगा. कौन सा आइटम है जिस पे कोविड का इफेक्ट नहीं है बताइए ना. सारे तो चले जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक और अभी तो ये कवर ही नहीं होने वाले. बहुत सारे आइटम्स हैं. तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये बोरोअर है, हायर परचेसर है, लेंडर है, लेसर, ये इंडस्ट्रीज पे तो हमें थोड़ा सा एक्सेसिवली देखना पड़ेगा. You are muted by unmuted. You are unmuted by. Now, after EMI deferment, the biggest concern, going concern, जिसके ऊपर पूरी एडवाइजरी इशू की जा चुकी है. पहले ही उस क्लाइंट की हालत खराब थी. 4-6 लोग तो उसको एनसीएलटी का हवाला देके 14 दिन का नोटिस देके उसके ऑपरेशनल क्रेडिटर ही बोल दिए थे कि तूने अगर हमको पैसे नहीं दिए तो हम तेरे को एनसीएलटी के अंदर नोटिस ठोक देंगे, आईबीसी ले आएंगे. जैसे तैसे तो उनको बैंक लोन लेके उनके पेमेंट करके आईबीसी में जाने से रुका था और ऊपर से ये हो गया. One of my nearest and dearest, his whole business is of ACs, coolers and all these equipment, fans, ACs and coolers. He's a real big distributor in MP. He is saying, what should I do now? My whole season impaired. March, April, May, June. बोला असीम कोई खरीदता है क्या? मेरा तो साल ही बर्बाद हो गया. ऐसे लोग जो पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस में है और अगला पूरा साल उनका निपट गया है, क्रेडिट वर्दीनेस पूरी खत्म हो चुकी है, वो तो सीधे बोल रहे हैं धंधा दूसरा देखना पड़ेगा बॉस. अब अगर ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि यार धंधा दूसरा देखना पड़ेगा, तो उनका तो गोइंग कंसर्न वाकई में खत्म हो चुका है. तो अब उनका तो वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल करने के लिए आ गए कुछ लोग कि सर अब क्या करें, वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप में ही चले जाते हैं. और वो पूछ रहे हैं वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप में किधर जाएं, आईबीसी में जाएं कि कंपनीज एक्ट में जाएं. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि हम वाइंडिंग अप में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे. शुड वी गो टू आईबीसी और शुड वी गो टू कंपनीज एक्ट. देन आप एडवाइस करें उनको कि अगर आप सॉल्वेंट हैं तो बेटर यू गो टू आईबीसी फॉर वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप बिकॉज इट्स अ बेटर रूट. खैर वो बात की, बट गोइंग कंसर्न अगर है तो देयर इज अ पॉइंट व्हाट टू डू. हाउ डू वी असेस द गोइंग कंसर्न, व्हाट टाइम स्पैन वी शुड हैव. इन एनी केस
12 महीने से ज्यादा का अगर सामने वाला अपनी प्रोलॉन्गनेस दिखा रहा है तो इट विल बी अ मटेरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न। हमने मैनेजमेंट से पूछा आप अपने गोइंग कंसर्न के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और मैनेजमेंट ने लिख के बोला कि इट इज हाईली अनसर्टेन एनवायरनमेंट फॉर आवर इंडस्ट्री एंड वी डोंट नो वेदर वी कुड सस्टेन, we will not be in a position to tell you whether we are going concern or not. We can tell you this only in next 1st April. अगली 1 अप्रैल को मैं ये बताने की सिचुएशन में रहूंगा सर कि मैं गोइंग कंसर्न रहूंगा कि नहीं रहूंगा। टिल देन आप मुझसे कुछ मत पूछे, जो है उसको रहने। Now sir, this situation is known as material uncertainty to going concern. It is not inappropriate going concern. एक होता है कि गोइंग कंसर्न बढ़िया है, एक होता है कि गोइंग कंसर्न अनसर्टन है, और एक होता है कि गोइंग कंसर्न खत्म हो गया। ये 3 वर्ड आपको अलग अलग ध्यान रखना। वन इज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, वन इज गोइंग कंसर्न मटेरियली अनसर्टन, एंड वन इज गोइंग कंसर्न इज ओवर। तो अब जो लोग बोल रहे हैं कि गोइंग कंसर्न जो है वो खत्म हो गया, तो ठीक है। जो गोइंग कंसर्न अगर खत्म हो गया तो लिक्विडेशन बेसिस पे सारी बैलेंस शीट बन जाएगी, सारी एसेट्स लायबिलिटीज को लेके आना नीचे, और वो तो सब अपना काम करना ही पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं सर अभी आप हमसे बात मत करो, 1 साल तक हम कुछ नहीं बता सकते कि हम क्या कर पाएंगे। यू डोंट वरी अबाउट इट, आप मत टेंशन लो उसको, हम नहीं बता सकते कि हमारा गोइंग कंसर्न क्या है। तो ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न। एंड इफ देयर इज एन uncertainty relating to going concern, our accounting standard 1 requires disclosure. Our standard on auditing 570 requires specific reporting, revised SA 570। SA 570 बोलता है कि क्लाइंट को कहो कि अपनी नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करे कि there is a material uncertainty to going concern, but we have not reduced our assets and liabilities. We have not reduced our assets and liabilities where to recoverable amount. हम recoverable amount तक उसको लेकर नहीं आए हैं। That specific disclosure is required, where this specific disclosure is required at the time of 31st March or somewhere आगे जाकर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। अगर उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570 रीएड्रेस करेगा उस नोट्स टू अकाउंट्स के पॉइंट। ऐसे 570 में आपको ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ डालना पड़ेगा, और उस मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ में आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और आपको ये लिखना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ में that attention of the users is invited to note number this of the notes the accounts where entity is facing a material uncertainty relating to going concern. Though balance sheet is prepared on going concern basis and there is no reduction in assets and liabilities as of now, but there is a serious material uncertainty relating to going concern. ये cross अपने को करना पड़ेगा. That is in standard on auditing 570. We require that. And further, मैनेजमेंट ने तो कहा कि 12 महीने बाद हम बताएंगे कि क्या हो रहा है, और पता चला हमारी बैलेंस शीट साइन होने के पहले वो खुद ही आ गए हैं कि हमारा तो वाइंडिंग अप पिटीशन ही फाइल होने वाला है. Then there is nothing. फिर ऐसे 570 के अंदर रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है. मैनेजमेंट को बोलेंगे कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर के आएंगे लिक्विडेटेड अमाउंट पर, और लिक्विडेटेड अमाउंट पर लाने के बाद नोट्स दी अकाउंट्स में भी एम्फेसाइज करेंगे. फिर लगेगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 701, and that SA 701 will emphasize the matter
that attention of the user is invited to note number this, that this is the last balance sheet of the entity as this going concern is over. Means it is business is over and all. जो ड्राफ्टिंग 701 की है, आज मुझसे कई सारे मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप 700 701 की ऑडिट मैटर में भी कोविड आएगा और 705 706 भी आप ले लें, पर आज मैं पूरी तरह से कंसंट्रेटेड था अकाउंटिंग इश्यूज पे। फिर किसी दिन बैठ जाएंगे और ऑडिटिंग इश्यूज को लेकर के ऑडिट रिपोर्टिंग को ड्राफ्ट करने की बात, कारो 16 के अंदर की बात, वो सब हमको लेनी पड़ेगी। थैंक गॉड कि कारो 2020 डेफर हो गया, नहीं तो मैं बता नहीं सकता था कि हम लोग किस हफ्ते में आ जाते। थैंक गॉड कि वो 42 43 पॉइंट जो है वो इस बार हमारे हेड पे नहीं है, अगर वो आ गए होते तो और रायता फैल जाता। सो वी शुड बी थैंकफुल कि भाई वो डेफर हो गया। अभी अपन कारो 16 में बात करेंगे, जब भी अपन रिपोर्ट पे मिलेंगे देन विल टॉक इन रिलेशन टू कारो 16। 14 डेज का क्वारंटाइन होता है, तो मैंने कहा जी 14 पॉइंट्स ले लेता हूँ। सो आई टुक 14 डेज, दिस इज माय लास्ट 14th। अब ये जो आपने इतने सारे बोले हैं कि भैया ये भी लॉस में डाल दो, ये भी P&L 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 में डाल दो। एक भाई बोलते हैं सर ये सब है ना इकट्ठे हो गए और ये सब इकट्ठे होकर बहुत मटेरियल आइटम बन, तो बहुत मटेरियल आइटम बन रहा है तो अपन एक काम करके इनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम दिखा देते। सर ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम का कंसेप्ट सिर्फ अब बचा है एएस, इंड एएस वाली कंपनियों में तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम लगना ही नहीं, तो वो तो भूल जाए। जिनके ऊपर इंड एएस लग रहे हैं वो इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम नहीं बता सकते, पर अब कुछ एंटिटी जिन पे एएस लग रहे हैं वो बोलेंगे सर इन सबको उठाओ, जितने भी लॉसेस सबको उठा के मैंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में दिखा देते हैं, ताकि अपना ईपीएस बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम और ईपीएस आफ्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम मैनेज हो जाए। So now the biggest question is in AS, not in Ind AS. Ind AS में तो you don't have any option. Ind AS में आपको इसको एक्सेप्शनल आइटम ही दिखाना पड़ेगा। हाँ, टॉकिंग अबाउट AS जिनके ऊपर लग रहा है वहां हम इसे क्या दिखाएं। देखिए जी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। यार 15-15 दिन का प्रॉब्लम आया है, तो ये 15-15 दिन के जो इंडिविजुअल आइटम्स में प्रॉब्लम आए हैं, इन सबको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर। हमारा पर्पस क्या है कि हम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट है वो दिखा दें, फिर उसमें से एक्सेप्शनल आइटम हटा दें, फिर उसमें से प्रायर पीरियड आइटम हटा दें और फिर हम दिखाएं। तो इंस्टीट्यूट ने जो एडवाइस दी है उसमें तो यही बोला है कि आप इसको एक्सेप्शनल आइटम दिखाओ, बट अभी फोर्सफुली इसको एक्सेप्शनल आइटम दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हो रही है उनका कहना है यार इंस्टीट्यूट ने कहा है कि एक्सेप्शनल आइटम है, बट हमारे यहाँ इतने ह्यूज लॉसेस हैं कि हम उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाना चाहते हैं, सो दैट आवर ईपीएस कुड बी बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड आफ्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुड बी मैनेज्ड। बट बात करेंगे कि अब करना क्या चाहिए, बट मेरे हिसाब से मतलब इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस आया है वो तो अभी यही आया है कि इसको आपको एक्सेप्शनल आइटम दिखाना है, डू नॉट ट्रीट इट एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। सो these 14 points are from my side relating to this COVID. Now the house is open for queries, and if queries are there, I love to answer the queries. Let me check. Let me have the chat box. 137 persons, but okay, so there is no query at all. If you have any query, you can raise. Over to chairman.
298 right now. Thank you for watching so patiently. Now over to Chairman. I'm unmuting. Yeah. Thank you very much, sir. It's been great pleasure of the ICI Indore branch as well as all the members hearing you here with excellent technology which we are using with you. Say the slides going on your background and we see you so nicely. Churchill watching it since long, the whole session I have seen him there. So I would like to thank Asim sir. सर आप म्यूट हो गए. हेलो सर, थैंक यू वेरी मच सर. आपके सामने वैसे भी हमारी आवाज कम निकल पाती है. अरे बॉस. Sir, so again I would like to thank all the members, seniors present here, especially Asim sir with so good technology, and it was very nice hearing you again and again sir. और हम चाहते हैं कि ये सेशन फिर से इस तरह से एक बार हो. मैं निवेदन करता हूँ सभी मेंबर से कि अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज आप इनबॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप बाद में भी मेल कर सकते हैं. असीम सर इज ऑलवेज विद अस. We will get the answers of your queries very soon. I thank the chairman ICI Indore branch Harsh Firoda ji. I thank Churchill Jain ji being so patient listener here. I the committee members as well as all the members present here with so good zeal. Thank you very much again. From my side, thank you to everyone, Churchill, Samkit, and all managing committee. Harsh is there. Thank you for giving such a wonderful crowd all the time. And there YouTube also, there are some viewers. So whatever queries are there, kindly send me. I'll try to address those. And thank you very much. So we'll meet you again whenever time permits. Thank you very much.